Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. And a great news there for Zimbabwe fans around the world as Zimbabwe qualify for the next round. They qualify for the Super 12 for the first time in this format. So congratulations to Zimbabwe. This is how it all went down versus Scotland. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जो मैच समरी है दोस्तों. Scotland batting first, 132 for 6. Muncy, of course, making that 54, but off 51 balls. That was a slow start for Scotland. A slow innings that really did not give them any chance. Zimbabwe there, well, it was the magic man Sikandar Raza once again who delivered the goods for Zimbabwe, and a historic win for Zimbabwe today. So congratulations to Zimbabwe. Big time congratulations. Earlier today, now this is how it has happened. Zimbabwe are on top of the table in Group B. Ireland also stunning the West Indies today, and they've also made their way into the Super 12. So congratulations to both the teams. This is just fantastic. And look, ये बात है क्रिकेट की. क्रिकेट में पता नहीं चलता और खास तौर पे T20 फॉर्मेट के अंदर, you know, when this is how your Super 12 teams have now. In Group 1, you've got England, New Zealand, Australia, Afghanistan, joined by Sri Lanka and Ireland as they qualify. And in Group 2, it is India, Pakistan, South Africa, Bangladesh, Zimbabwe and Netherlands. We're going to talk more about the Super 12s and how these groups look with our guests, our icons, our legends. I've got in the studio with me Shoaib Malik, Misbah Haq, and the Sultan himself, Wasim Akram. Unfortunately, Waqar Younis is not feeling well and he will not be joining us for this evening, and we wish him all the well. He gets well soon and joins us tomorrow morning. And with that, let's just get going. What a great game of cricket. Yeah, what a great day of cricket. Yes. You know, teams have qualified for the Super 12. Congratulations to all of them, all four teams. And coming back to the game, it was, one of those games where you either win, you qualify, you lose, you go home. And I think जो Scotland की और जो आज batting थी, there weren't enough runs. पहले, I think power play के बाद 10 ओवरों में boundary कोई नहीं मारी और Muncy scored 54 or 51, but उसका कोई intent नज़र नहीं था आ रहा और उसके जो आखिरी 30 बॉल खेलने उसने सिर्फ 25 रन किए हैं. So obviously 132 run, those totals even on these pitches, through slightly better pitches हैं for bowlers, आपको 130 इतना pressure नहीं डालता. हालांकि जिम्बाब्वे के ऊपर से विकेटें गिरी हैं, मगर again like you said, the magic man, the man with Midas touch, golden touch, Sikandar Raza has been performing amazingly well with bat, ball and, you know, with field. So Zimbabwe outplayed Scotland today. I mean, celebrations for Zimbabwe and of course heartache for Scotland. They did really worked hard. They did. What do you think, Misbah, went wrong with the Scottish batting earlier today? I mean, ये जब पहले बैट कर रहे थे, बड़ा slow start था और of course couldn't get any momentum. I think to start with, जॉन्स ने जिस तरह पिछले मैच में इनिंग खेली थी, मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दी कर गया. पहले ही ओवर में वो नॉर्मली इन द लास्ट गेम ही स्टेड देयर, ही प्लेड नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स, टाइम लिया अपना और जिस तरफ का बॉल था उस तरफ खेला. आज आते ही वो निकल के मारने गया और आउट हुआ. उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर आ गया, क्योंकि नॉर्मली ये टीम्स टॉप 1, 2, 3 जो इनके बैट्समैन होते हैं उन पे खेलती है. और स्पेशली इतनी अच्छी इनिंग्स खेली थी पिछले मैच में, सडनली उसके आउट होने की वजह से एकदम से वो जो प्रेशर आया उन पे और एक वो शेल में चले गए. और उसके बाद मंसी, आई थिंक ग्रेट मैचअप्स यूज बाय जिम्बाब्वे, और जो जिस तरीके से वो अपना गेम प्लान और बॉलर्स को यूज़ कर रहे हैं, दे हैवंट गिवन देम एनीथिंग. नॉर्मली इंटेंट भी नज़र नहीं आई. और आई थिंक द मेन difference was over 17 to 15. Scotland only scored 48 runs, जबकि सिर्फ एक विकेट गिरी. 48 रन आप 9 ओवर्स में कर रहे हैं, ऊपर भी आपकी 2 विकेटें गिरी और 1 विकेट गिरी, जबकि 2 विकेटें ही गिरी थी जिम्बाब्वे की. उन्होंने 76 रन किए हैं उस पीरियड में, and that made the whole difference. Yeah, comparison of the passage of play on both sides is very visible. सिर्फ 2 ही छक्के आज लगे हैं, दोनों सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे के लिए किए. No sixes from the Scottish batting today. I guess जो mindset सुबह वसीम भाई ने एक बात की थी वो बहुत important है, क्योंकि
जब डू एंड डाई सिचुएशन में आप एज अ टीम ये सोच लें कि यार हमने 150 करना है या 140 करना है ताकि हम उसको डिफेंड कर सके व्हाट वी हैव सीन सो फार इन द होल टूर्नामेंट, तो वो एक माइंडसेट जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो मंसी हैं इन्होंने 54 रन्स किए 51 बॉल्स में। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, अगर यही 50 ऑड रन्स होते और 30 ऑड बॉल्स होती तो जो बाकी के बॉल्स थे वो दूसरे यूटिलाइज उसको कर सकते थे, क्योंकि अगर आपने 160 पे पहुंचना है तो आपको 2 बैटर्स चाहिए जो वो रन्स कर सकें, और यही डिफरेंस था। देखें जो दूसरे क्रेग एरविन उन्होंने इनिंग्स खेली, उन्होंने 58 रन्स किए 54 बॉल्स पे, बट वो एक्सेप्टेबल इसलिए है कि उनके सामने टारगेट था और वो अचीवेबल था, और इसीलिए मुझे लगता है कि दे कुड हैव डन बेटर, स्पेशली जो उनके फर्स्ट 3 बैटर्स थे दे आर इन गुड फॉर्म जो स्कॉटलैंड के हैं, और उनमें से अगर जॉन्स जैसे हैं वो भी अगर थोड़े से रन्स बनाते तो एक अच्छा टोटल लग सकता था बोर्ड पे। बिल्कुल, एवन ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है आज जिम्बाब्वे के लिए। मिसबा, आई थिंक गुड साइंस फॉर देम। सिकंदर ही स्कोर कर रहा था तो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर देम। बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, तो बहुत एक बड़ा प्लस है जिम्बाब्वे गोइंग इनटू द नेक्स्ट राउंड। एरविन के रन्स करना, आई थिंक सिकंदर रज़ा भी थोड़ा सा रिलीफ अब फील करेगा। स्टिल दे आर वेटिंग फॉर विलियम्स, वो भी इनके मेन प्लेयर हैं। जब से टेलर नहीं है तो इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बट आई थिंक जो ओवरऑल जिस तरीके से जिम्बाब्वे अप्रोच कर रही है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एशिया कप में अगर आप देखें तो सारी टीम्स टॉस पे खेल रही थी। बिल्कुल ऐसे डिफेंड कि आप जी बस पहले बॉलिंग करो बिल्कुल और उसको स्कोर को चेस करो, बट श्रीलंका वाज द फर्स्ट टीम जिन्होंने फाइनल में शो किया कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। If you are a good team, in any situation, toss is just there to start the game. अगर आपका माइंडसेट ठीक है, और आज ये प्रूव हुआ। आप देखेंगे आयरलैंड ने, उन्होंने नहीं सोचा, वेस्ट इंडीज थी सामने, हम उस मैच की बात करेंगे भी और बाद इस में मैच में भी जिम्बाब्वे ने भी नहीं सोचा कि वो टीम पहले खेल रही है, उन्होंने जस्ट वेंट देयर। ठीक है, हमने उनको रोका एक स्कोर पे, चेज इट डाउन। अगर वो टॉस को बहुत ज़्यादा आप जहन पे सवार कर लेते हैं तो देन आपका माइंडसेट उस तरह का होता है और परफॉर्मेंसेस उस तरीके से नहीं होती आपकी। तो आई थिंक आपको टॉस पर ही रहना, आपको पॉजिटिव रहना कि इन एनी सिचुएशन वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट आवर प्लान्स प्रॉपरली, एंड चाहे पहले खेल रहे हैं बाद में खेल रहे हैं, ट्राई टू विन द गेम। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट देयर कि यू कैन नॉट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन द टॉस, वरना ये एशिया कप में तो ये हो रहा था जी टॉस जीत गया तो बस मैच इज ऑलमोस्ट देयर। इवन इन पीएसएल भी काफी दफा ये होता है, वो जब मॉइस्चर होता है जहाँ पे ड्यू होता है, सॉरी पीएसएल और एशिया कप में थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे यहाँ पे ड्यू पड़ती है, सो दैट्स व्हाई मोस्टली टीमें की थोड़ी बहुत ड्यू इस दफ़ा शारजा दुबई में कम पड़ी है, बहुत कम, लाइक रियली माइनर। सो उस ड्यू से क्या होता है, बड़ा दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बॉल की सीम इवन हल्की सी भी गीली हो जाए तो ना वो ग्रिप होता है स्पिनर से, ना वो टर्न होता है और ना वो सीम होता है। सो बैट्समैन के लिए आसान होता है फ्रंट फुट पे आके सीमेंट की तरह बैटिंग करना। सो दैट्स द रीज़न टीम्स ऑप्ट आउट टू डिफेंड, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। All right, with that, it's time for the fall of wickets, brought to you by Coca-Cola. मैं भी शुएब सिकंदर रजा की बात कर रहा था। He's been a magic man for Zimbabwe and yet again today. उसकी अच्छी चीज़ ये है कि he is not thinking कि इतने आउट हो गए हैं, ये टारगेट हमें करना है. He is not involving in other stuff. He is like so focused अपनी गेम में. और देखें जहाँ उसको बैट बॉल मिलता है वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो रहा है. सो इट सीम्स कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, सिर्फ बैटिंग में नहीं बॉलिंग में भी. तो मेरा ख्याल है किसी भी टीम के जो प्लेयर्स हैं अगर वो फोकस रहें अपने गेम पे तो वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं. क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा. फखर, अगर आपने नोट किया हो हमारे व्यूज़ ने कि जो सिकंदर रजा की ये पर्टिकुलर इनिंग है, ही स्कोर्ड 136 रन्स, द मोस्ट सो फार in this World Cup. Yes. in this World Cup. साथ में 5 विकेटें भी ली है. So yes, he is having a time of his life. जो भी गेंद उसका एक एरिया है, उसने ये डिसाइड किया हुआ है
कि जो भी गेंद उसके एरिया में आएगी उसने मारनी है। वो जो उसका एक उसने ऑफ स्टंप के बाद भी थोड़ा किया, उसने थोड़ा आगे किया मगर वो ऑफ एक्स्ट्रा कवर उसने मारा। सो दिस इज शोएब मलिक इज ट्राइंग टू से कि इज प्लेइंग हिज गेम, इज फोकसिंग ऑन हिज ओन गेम, इज नॉट वरीड अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। वंस ही नोज कि वो इतनी फॉर्म में है, इम्पैक्ट प्लेयर है, अगर वो करेगा स्कोर जिस तरीके से उसने आज भी किया, 40 किया 23 गेंदों पे और 173 के स्ट्राइक रेट से, यू कांट गो रॉन्ग विद दैट। But Wasim, now that since everybody is probably watching his innings over and over Yeah. and kind of identifying these are his strong areas, don't you think that they're going to start using the short ball against him? And that too towards his body. Yes, Yes. they probably will. Especially the fast ball is 140 plus. Let's see. He probably has improved a lot. He's been must getting be. runs all year round, not just this. Right. He is one of the top run getters in this year in world top 5 में आ रहा है वो. बिल्कुल. So maybe he has improved on the short pitch delivery के खिलाफ उसने improvement की हो शायद. You know, isn't it? Yes, Shoaib. एक और चीज़ भी है, जो 140 वाले बॉलर्स हैं, जब अगर पता है कि एज अ बैटर ये इसका वीक एरिया है, तो वो एक बाउंसर करते हैं। अगर बैट्समैन उस पर बाउंड्री ले जाए तो वो बंद कर देते हैं अपने प्लान को कि फिर दोबारा नहीं करना है इसको। बट वहाँ पे ये आना चाहिए कि नहीं, यू कीप टारगेटिंग बैटर्स वीक एरिया। Yeah, as a fast bowler, Misbah. बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर आपको एक पता है कि ये मैच विनर है तो आपने उसको कोशिश करनी है कि आउट करना है। वो अगर वो 20 गेंद खेल गया या 25 बॉल खेल गया तो डेफिनेटली वो ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर देगा जो कि टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो ये कि ऐसे बैट्समैन को आपने कोशिश करना है कि रन्स रोकने की बजाय आउट करने की कोशिश करें। और दूसरा, जो सिकंदर रज़ा सिर्फ बैटिंग में नहीं है, जो उसकी एनर्जी नज़र आ रही है, जो ग्राउंड में उसका एग्रेशन नज़र आ रहा है। बॉलिंग में देखें 4 ओवर में 20 रन, जबकि विकटें नहीं गिरी हुई, सबसे मुश्किल टाइम था, सेट बैट्समैन सामने था। और आई मीन दैट वाज बेसिकली द टाइम, उसकी जो बॉलिंग, वो जो स्पेल था जिस टाइम पे, दैट बेसिकली सेट अप द होल गेम। Yes. क्योंकि वो टाइम था एक्सलरेट करने का, मंजी खड़ा हुआ था और नॉर्मली वो इस टाइम पे एक्सलरेट करता है, बट ही वाज गिविंग हिम नथिंग। बिल्कुल ही भाई ने भी आगे से धक्का लगाया होता फुल। उसने कोशिश की है इधर उधर हिल के मारने की, बट सिकंदर वो जिस तरह वो ट्रिक्स अपने यूज कर रहे हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। यॉर्कर्स ऐसे बॉलर्स को, आई मीन ही इज इम्प्रूव्ड दिस कैरम बॉल छुपा के आता है, बट आई सपोज अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूँ और सेट हूँ, आई एम अ लेफ्ट हैंडर, सो मुझे पता है कि इसने ये टर्न तो होना नहीं है। हल्का फुल्का अगर आएगा तो सीधा ही रहेगा मोस्टली, ऑफ ब्रेक भी इसका टर्न नहीं होता और ये वाला भी। सो आई ट्राई टू हिट हिम स्ट्रेट। अगर मेरे वो एरिया में आ गया, मेरे जोन में आ गया, तो वो मनसी ने नहीं किया। वो आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, द वे आपके 2 बॉलें हमने देखी हैं अभी, फुल टॉस भी सीधी मार दी है उसने। नॉर्मली वसीम भाई, मंसी स्ट्रॉन्ग एरियाज आर स्केयर ऑफ द विकेट, एंड रिवर्स लैप भी मारता है वो। और आप देखेंगे जितने बॉल किए हैं सिकंदर ने, ही वाज जस्ट बॉलिंग द यॉर्कर्स फुल ब्लॉक। उसको पता है कि ये सामने नहीं मारेगा, हट के सीधी शॉट, इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये लेंथ मांग रहा है कि मैं उसको स्केयर ऑफ द विकेट मारूं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैचअप सेंसिबली वो यूज़ कर रहा है अपने वेरिएशंस को, और स्पॉट ऑन है। उसको हर बैट्समैन का पता है कि मैंने इसको कब कौन सा गेंद करना है, वरना बॉल तो सीधा ही जा रहा है। बस सिर्फ वो माइंड को रीड कर रहा है उसकी, और उसके मुताबिक वो अपनी बॉलिंग। Yeah, that is fantastic gameplay there by Sikandar Raza. Very proud of him. I met him during the PSL once, interviewed him, took him out flying airplanes, and a very humble human being, a very soft, gentle human being. और दोस्तों इसके साथ ही वक्त हुआ है जुबली से फैंस का, brought to you by Jubilee Insure. शोएब, मिसबा, उस दिन आप लोगों ने हमें कैचिंग की एक डेमो दी थी और उसमें आप कह रहे थे कि वो बेस बनाएं आप, और बेस के साथ जो है फिर आप अपना कैच जो है कंप्लीट करें, और कीपिंग द आई ऑन द वो। हाउ डू यू प्रैक्टिस और गो थ्रू अ कैच लाइक द वन वी जस्ट सॉ? ये जो कैच उन्होंने लिया है डाइविंग, या जो भी मुश्किल डाइविंग कैचेस होते हैं मिड एयर हवा में जो आप पकड़ते हैं फुल स्ट्रेच के अंदर, उसकी भी कोई टेक्निक है, कोई एप्लीकेशन है, या दैट्स जस्ट आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड यू गेट लकी? देखिए कोऑर्डिनेशन है, बट अगर आप पावर पोजीशन में होंगे तो आप यू विल बी एबल टू मूव। अगर मैं फ्लैट खड़ा हूँ तो यहाँ से तो मैं कहीं ना डाइव कर सकता हूँ ना मैं किसी तरफ जा सकता हूँ। तो अगेन जो बैटिंग वाली चीज़ हम कह रहे थे, या उस दिन हम जो कह रहे थे कि दोनों टांगों पे आपने थोड़ा सा वेट डालना है, उसको रेडी पोजीशन में जाना है, पावर पोजीशन में।
देन ऑब्वियसली अब ये देखें ना, ये देखें उसकी मूवमेंट देखें ना, वो लुक एट दैट, ही इज मूविंग स्प्रिंट। उसने एंटिसिपेट किया, जा रहा है, उसने उसके मुताबिक टाइमिंग से छलांग लगाई है। उसने 3 मिनट पहले नहीं छाल मारती यूजुअली जो करते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अगर बाउंड्री पे देखे, अपने प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, हंस रहा है यार तू, जनरल बात कर रहा हूँ कि कई दफ़ा मैंने देखा है, नॉट पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में देखा है कि वो लड़के जब जंप करते हैं यहाँ पहले कर जाते हैं या बाद में कर जाते हैं। सो उसके लिए प्रैक्टिस से टाइमिंग कि मैंने कब जंप करना है, ये बॉल ने इधर आना है, ये बैट्समैन अंदर खेलता है, मैं अपने आप अंदर आ जाऊँ, ये चीज़ें उस दिन शोएब एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये आपने खुद देखनी है। फॉर इंस्टेंस अगर तेज़ बॉलर लगा हुआ है, से नसीम शाह लगा हुआ है अर्ली ऑन, तो फाइन लेग थोड़ी सी अंदर होगी बिकॉज वो आगे करता है यॉर्कर। अगर हल्का सा ऑफ लाइन हुआ वो लेग स्टंप पे जाएगा, जब लेग स्टंप पे जाएगा तो बैट्समैन अंदर खेलेगा उसको, वो अंदर को जाएगा। अब ये चीज़ें आई सपोज शाहीन को खुद पता होगी, बट फील्डर कई दफ़ा खुद भी जज करनी चाहिए उसको ये चीज़। वसीम भाई, जाहिर है आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड देन यू विल एबल टू बेसिकली मूव। एक तो आपने देखना है उसको, अगर आप यूं वॉक करके आ रहे हैं और सडनली आपको पता भी चल गया कि बॉल इधर को जाना है, तो मैं एक दफ़ा यूं होऊंगा और फिर टर्न करूंगा। अगेन इट्स अ हैबिट एंड अ रूटीन इवन इन प्रैक्टिस। सो मिसबा, व्हाट, सॉरी जस्ट शोएब, गो अहेड। फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग सबसे पहले ये माइंड में होना चाहिए कि ये मज़ा है, ये फन है। इट्स एज फन एज बैटिंग एंड बॉलिंग। एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ ये ज़्यादा फन है, बॉलिंग बैटिंग से भी ज़्यादा फन है फील्डिंग जो है। आप हमेशा जब आपके लेफ़्ट या राइट पे कैच आता है तो आपकी एग्जीक्यूशन लेट या जल्दी वो तब होती है कि जब आपका माइंड वहाँ प्रेजेंट ना हो, आप कुछ और सोच रहे हो, चाहे आप अपनी बॉलिंग के बारे में सोच रहे हो या बैटिंग के बारे में सोच रहे हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हेन यू फील्डिंग, और वो है ना वर्ड स्विच ऑन स्विच ऑफ, वो यही है कि जब बॉलर अपने मार्क पे जा रहा है तो आप स्विच ऑफ हो सकते हैं, लेकिन वंस द बॉलर स्टार्ट टेकिंग हिज रन अप, फिर आप बिल्कुल ऑन। और जैसे मिसबा भाई ने कहा कि आपकी पोजीशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, और स्ट्रांग पोजीशन कभी टॉल रहने से नहीं आती है, वो थोड़ा सा आपको बेंड होना पड़ता है। उससे आप यू रेडी फॉर एनीथिंग। जो कैच देखा हम लोगों ने वो यही था कि ही वाज रेडी, वो एक साइड पे जाने के लिए नहीं रेडी था, वो दोनों साइड पे। मैंने डोमेस्टिक आपकी T20 पिंडी में हो रहा था, आई डिड अ कमेंट्री एंड सिंध की टीम, मैं नाम नहीं प्लेस के ले रहा, पीपल गेस, सिंध की टीम फील्डिंग के लिए जा रही है। फॉलो द कैमरा। सिंध की टीम ये आगे घुसे हैं, कप्तान आगे और 3 फील्डर जा रहे हैं जिंद करके, शॉर्ट फाइन लेग 3। कप्तान को बताना पड़ा, पाजन तुसी उधर जाना है तो तुसी उधर जाना है। सो ऐसे फील्डिंग इंप्रूव नहीं होगी। शॉर्ट फाइन लेग पे वो जाता है जो बॉलर एक तेज हो, थका हो, जो बेस्ट फील्डर होते हैं आपके, वो शॉर्ट फाइन लेग पे नहीं जाते। ये वैसे ही है ना वसीम भाई, जब शो खत्म होता है तो ये अपने 2 भाई निकलते हैं क्योंकि इनको पता है ग्रीन रूम में खाना रेडी है, रोटी पड़ी है। ये कहाँ से आई है मिसबा बात? तेरे साथ बैठा हुआ है भाई, हेलो, ये कहाँ से आई है बात बीच में? मतलब फाइन लेग नहीं, तो ग्रीन रूम को फाइन लेग सारी वीडियोस बनाई हैं, वो तो ठीक है, मगर आर यू सेइंग दैट आवर फूड इज लाइक फाइन लेग, कि हम फाइन लेग की तरफ भाग पड़ते हैं? वो कह रहे हैं ना 3 बंदे गए एक फील्ड पोजीशनिंग के लिए। So you guys got off the topic now. Come back. अच्छा वसीम भाई, एक चीज जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, for being the supportive voice of reason. Yeah, supportive. जो फील्डिंग में आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे लेटली जब कैप्टनसी में मैं मोस्टली कवर और मिड विकेट पे फील्ड करता था, तो अच्छा आपका एक जो पहली बात कि आपने एंजॉय करना है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 2020 का मैच खेल रहे हैं तो आपने 120 बॉल है तो आपने सोचना है 120 के 120 बॉल मेरी तरफ आने। I mean a young kid like Haider Ali should be one of the best fielders, not just in Pakistan cricket, in world cricket. But to me other day वो एक मिसफील्ड की, भाई इधर चला गया, गेंद इधर चला गया। That again what you were saying, कि gotta be focused। 20 ओवर में तो फोकस की प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। You know, ठक 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 ठक, वनडे में I can understand, दरमियान में 10 ओवर सो भी जाओ, doesn't matter now। और आप वो बात खत्म कर लें फिर इसके ऊपर आप वो कैसे कर सकते हैं? I mean, आप दूसरी टीमों को देख लें, जॉन्टी, अभी हम वहाँ पे गए थे जो लेजेंड्स लीग में गए थे, वो मिड विकेट पे फील्ड कर रहा था,
स्केयर लेग पे बॉल पीछे जाती थी तो वो वहाँ से, अब वो पता नहीं 50 से या 50 से भी ज़्यादा, वो वहाँ से मिड विकेट से दौड़ के जाता था, थ्रो नहीं भी लग रही कीपर के पीछे बैकअप के लिए, उधर खड़ा था, वहाँ से थ्रो आती तो उस तरफ। दिस इज़ द वे कि आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं गेम के अंदर और आप तभी प्रेजेंट रहते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं। दुनिया में बहुत फील्डर आए और फिर आप थ्रो जो है वो भी आप कोशिश करते हैं कि कीपर से लेके प्लेयर को थ्रो करने, ताकि आपकी वो मसल्स जो है वो गर्म रहें और आप जब रन आउट का कोई चांस है तो आपको दुनिया में बहुत फील्डर्स आए। व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, जावेद भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट वन, एंड एक नाम आता था इंग्लैंड के डेरिक रेंडल का, इफ़ यू रिमेंबर, ही वाज अ ब्रिलियंट फील्डर। बट उसके बाद वेस्ट इंडीज से रॉजर हार्पर आए, लंबे थे, बड़े हाथ, एंड देन गस लोगी was a gun fielder, but Jonty Rhodes, there is only one Jonty. when he came, and nobody remembered anything else. फिर बात वसीम भाई वहीं पे आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें तभी कोई करेगा जब उसका टैंक एनर्जी से फुल होगा, फिटनेस। जिस बंदे को ये होगा कि मैंने 3 स्प्रिंटें या 4 लगा ली तो मैं 20 ओवर कैसे खड़ा रहूँगा और फिर मैं बैटिंग कैसे करूँगा, तो मेंटली यू इस पे मिसबा बात करेंगे, जॉन्टी रोड्स पे भी बात करेंगे वसीम, बिकॉज़ देयर इज समथिंग दैट आई हैव अ ग्रेट स्टोरी अबाउट जॉन्टी रोड्स। सेम हियर, एंड आई शेयर दैट विद यू मोमेंटरीली। मगर इस वक्त हुआ है रिफ्रेशिंग मोमेंट्स का, ब्रॉट टू यू बाय तपाल दानेदार। राइट जी, वे फॉरवर्ड पे बात करते हैं वसीम। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर स्कॉटलैंड, बिकॉज़ दे यू नो Scotland, I suppose, should be proud of themselves being associate nation. I think they've done well. Regular cricket खेल रहे हैं, उनके जो mostly cricketers हैं काउंटी में भी खेलते हैं, and I suppose the learning curve, learning lesson for them would be from this particular World Cup, that the way they batted in the first innings. Yeah. कि किस तरीके से हमने ऐसे क्रूशल नॉकआउट मैच में, डू और डाई मैच में हमने किस तरीके से बैटिंग करनी है। 50 नहीं करना हमने 51 गेंदों पे। वंस द विकेट, लाइक मिसबा ने कहा, विकेटें हाथ में थी इनके, 9 विकेटें हाथ में थी जी, और फिर भी इनकी इंटेंट नहीं थी आ रही। आई थिंक वहाँ पे इनको काम करने का। फील्डिंग दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, ऑलवेज हैज बीन स्कॉटलैंड दैट वे। ऑलराइट, एंड दैट वाज द वे फॉरवर्ड, ब्रॉट टू यू बाय बैंकल फला। और इसके साथ ही दोस्तों हम लेते हैं एक वक्फा राइट हियर ऑन द पेविलियन। जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज के पहले मैच की, वेस्ट इंडीज़ बामुकाबला आयरलैंड, और उसके साथ साथ ये जॉन्टी रोड्स के हवाले से शोएब कुछ बताना चाह रहे थे, वो वापस एक मेरे पास है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। याद रहे कि थोड़ी देर बाद आस्क द पेविलियन, हैशटैग आस्क द पेविलियन पे आपके सवालात जो हैं वो मौसूल करना शुरू कर देंगे और उनके जवाब देंगे। देखते रहिए ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। सी यू बैक इन द पेविलियन मोमेंटरीली। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। और क्वालिफायर्स अब ख़त्म हो चुके हैं और सुपर 12 की टीमें जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे जो आखिरी मैच था स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, विच यस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रूटीन चेंज हो गई, रूटीन चेंज हो गई है बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं जो पहला मैच था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस आयरलैंड का। ना वेस्ट इंडीज़ ऑफ कोर्स, ये आपके सामने है मैच समरी, पहले बैटिंग करके 146 रन किए उन्होंने 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और आप देख सकते हैं वेरी गुड बॉलिंग बाय डेलनी देयर, 3 विकेट्स फॉर 16 रन्स। किंग अप देयर विद 62, चार्ल्स looked really good before he went, he got out 24. And जवाब में it was great to see Paul Sterling coming to the party, eventually getting his form right, and Tucker then helping him out. This is how it went down. Akil Hussain there picking up that wicket. West Indies again there but not there. No, they were never there. Yeah. This today wasn't a win. It was thrashing by Ireland. They won by 9 wickets. Yes. And it appears to me that West Indies players' priority is not to play for West Indies. All these young kids are coming from West Indies, new talent, if there is any. Because what a cricket West Indies, शुक्र is not the right word, कि जो हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 80s में 90s में खेली है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं एज अ यंग क्रिकेटर दुआ करता था सोने से पहले कि हम इनके करीब आ जाएं, फॉरगेट विनिंग, कि हम क्लोज मैच कर लें। एंड लुक एट, फॉर एग्जाम्पल फेबियम एलन ने बता दिया हुआ है वेस्ट इंडीज सेलेक्टर्स को कि इट डज नॉट वांट टू प्ले फॉर वेस्ट इंडीज। सेम सुनील नारायण, आंद्रे रसल, not bothered, not interested, and that's why their cricket is going down. I mean, today's game, they were lethargic, they look, they're not bothered. I mean,
it was kind of West Indies is a big team. They attract crowd. They have very exciting cricket. For some odd reason, from last 10 odd years, the youngsters are gone slightly soft. You know, वो talent में वो भड़क नज़र नहीं आती, वो winning streak नज़र नहीं आती, वो hunger नज़र नहीं आती, and it's very unfortunate for world cricket. Yeah, truly that is there. But good to see Paul Sterling, मिसबा हम आज सुबह ही उनकी बात कर रहे थे कि बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं और 6 ओवरों में बड़ी सी बड़ी टीम को तबाह कर सकते हैं अपनी बैटिंग से. But finally आज he got back into the action. Yeah, I think आउटस्टैंडिंग इनिंग, स्पेशली इतने प्रेशर के बाद जब आप पीछे रन्स ना कर रहे हो और ऐसा मैच हो कि जिसकी में आपको पता है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस मैच पे डिपेंड कर रही है, और इस तरीके से आके जिस इंटेंट से वो खेला है, दैट इज़ समथिंग टू लर्न फॉर अदर बैटर्स ऑल्सो. क्योंकि आप जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है. जो हम बात कह रहे हैं ना कि फॉर द सेक ऑफ टीम जो उनका रोल है, उन्होंने वही पहले ओवर में आया, पहली बॉल से निकल के मारने गए हैं कि जो मेरा गेम है मैं अंडर प्रेशर करूँगा इनको, फॉरगेट अबाउट कि मैंने रन्स नहीं किए हुए या मैं थोड़ा सेट हो जाऊँ या ये कर लूँ. बस मैंने नेचुरल गेम खेलनी है. और मैंने सुबह ही कहा था कि अगर ये खेल गए 6 ओवर. बिल्कुल, आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी तो खेले हैं पॉल. जी बिल्कुल, PSL में पिछले साल भी आप अभी जो सीज़न खेल के गए हैं उसमें आप देखेंगे जब भी उन्होंने 6 ओवर खेले हैं, 6 ओवर में इस्लामाबाद ऐसी टीम थी जो 60+ होता था उसका स्कोर, और इनका काम ही ये होता था कि 6 ओवरों में अपना 50 कर देते थे. तो आई थिंक ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर. और पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हुई है. गैरेथ डेलनी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग किया, 3 विकेट नहीं, उन्होंने 16 रन्स देकर. शोएब, व्हाट वाज देयर एनीथिंग स्पेशल ही वाज डूइंग और वर द वेस्ट इंडीज बैट्समैन नॉट अप्लाइंग देमसेल्व्स? आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम वेस्ट इंडीज़ ने 146 किया, और जो विकेट्स उन्होंने ली उन्होंने मेन बैटर्स की ली. एवन लुइस की ली, निकलस पूरन की ली और रॉबमैन पावल की. और ये ऐसे बैट्समैन हैं जो फिनिशर हैं, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कर रहे हो. तो आई गेस इसी की वजह से ये जो था 146 हुआ, वरना इट कुड हैव बीन 170, 160. बिल्कुल ऐसे ही है. स्ट्रगल कर रहे हैं वाज़े तौर पे स्पिन बॉलिंग के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की टीम. वसीम, या वो हमने कल भी डिस्कस किया था, दे आर स्ट्रगलिंग स्पेशली इन द मिड ओवर्स. एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव कि ये मैचअप्स यहाँ डाटा पे बिलीव नहीं करते एज मच दीज गाइज. जी हाँ, ये ज़रा आप देख लें वेस्ट इंडीज़ अगेंस्ट स्पिन इन T20 वर्ल्ड कप इस साल जो था, इन्होंने 117 रन किए हैं, 13 डिसमिसल्स इनके हुए, 9 रन की एवरेज है, रन रेट 4.87. या दैट्स मुझे ये लगता है कि जब वेस्ट इंडीज़ में भी मैं काफ़ी CPL भी खेला हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला हूँ, तो वहाँ पे स्पिनर का बॉल बाउंस नहीं होता, नीचे रहता है बॉल. लेकिन ऑस्ट्रेलिया little ours are better T20. ours is better version if we Batting, compare our pitches to Caribbean Sure. pitches. तो उसमें ये है कि या ये बॉल को रोकते हैं या उसको स्ट्राइक करते हैं 6 रन मारने की. ये नहीं देखते कि सेम बॉल को हम गैप में खेल लें तो हम शायद जो है थोड़ा सा लंबी इनिंग्स भी खेल सकेंगे, हमारी स्ट्राइक जो है स्ट्राइक रेट जो है वो बेटर भी रहेगा इससे. One thing more, sorry to cut you, कि they don't look fit. West Indies were kind of had, in 80s, 90s. Super fit, They were like lean super machines. fit, 6-pack, muscular, 6'4". Now they look, unfortunately, they don't look fit. I don't want to use a negative word, but they don't look very fit. They look a bit big on the field. And रोकना और छक्के मारने में वही फिटनेस का आ जाता है कि सिंगलें दुक्के भी लेनी है ना दरमियान में. वो लेंगे तो इनसे लाइक यू सेड कि कई दफ़ा आप फिट नहीं होते तो आपसे बैटिंग में वो हिट नहीं लगती. बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा लेट बैक ज़्यादा है. दूसरा जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे, बिकॉज ऑफ द विकेट्स भी थोड़ा है और थोड़ा सा उनका माइंड सेट से छक्के मारने का है. वो बिल्कुल अपनी रिस्क यूज़ नहीं करते. स्वीप शॉट देखें आप, 6 के 6 बैट्समैनों में कोई भी नहीं मारेगा. आजकल दौर है कि आप रिवर्स मारते हैं. आप स्पिनर को अगर पता है कि मुझे बड़ी हिट ही मारनी है इस बैट्समैन ने, और स्पेशली फ्रंट फुट पे मारनी है बड़ी हिट, वो कभी भी आपको आगे गेंद नहीं करेगा. देखें बैक ऑफ लेंथ या बिल्कुल फुलर, क्योंकि ऑलरेडी स्पिनर नोज के इसने जब भी मारनी है बड़ी शॉट मारनी है तो मैंने वो स्लॉट में बॉल नहीं करना. और स्लॉट में जब बॉल नहीं होता दे जस्ट ब्लॉक द बॉल.
Credit to the Irish bowlers. They were very meticulous in how they operated. Brandon King ने लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग आज की और यही रहा कि कभी किसी दिन कोई एक अच्छी बैटिंग कर जाता है, किसी दिन कोई और अच्छी बैटिंग कर जाता है. What was special about? Also, apart from Brandon King, I think there's a big question mark on Nicholas Pooran's captaincy. I understand he's a young captain, new captain, but वो लग रहा है कि वो टीम को जेल नहीं कर पा रहा या डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा. I suppose on the field especially. I know he has to lead from the front. But sooner the better. They have the most experienced captain in this squad, like Holder. उसको उन्होंने पता नहीं क्यों हटा दिया. वो बड़ा sensible cricketer है, good all rounder. He can bat, he can bowl, but he is just playing as a player. और मैचअप्स की बात कर रहा था. अब हमने उस दिन डिस्कस किया कल के परसों के ऑस्ट्रेलिया में जब स्पिनर एक ओवर करता है पहले 2 में तो वो स्विंग नहीं होता उसके बाद बॉल. आज शेर के बच्चों ने पहले दूसरा ओवर दिया अकील को. He went for 16 and when you're defending 146, 16 रन सेकंड ओवर में पड़ जाए तो प्रेशर इज ऑफ फ्रॉम द बैटिंग साइड. आपने वसीम अभी थोड़ी देर पहले जब आप बैट्समैनों की बात कर रहे थे आपने कहा दे डोंट लुक फिट द वेस्ट इंडीज स्क्वाड बेसिकली और बैटिंग के लिए भी आपको फिट होना जरूरी है. इंटरेस्टिंग अगर आप नोट करें ब्रैंडन किंग जिनकी आज सबसे बेहतरीन इनिंग थी, इन्होंने 62 रन किए 48 गेंदों पे. आखिरी जो 20 गेंदें इन्होंने खेली हैं उसमें सिर्फ 20 रन किए इन्होंने. मंजी की तरह, मंजी भी शुरू में जब तक बॉल जरा हार्ड था बल्ले पे आ रहा था तो वो मारते रहे, उसके बाद जाके वो भी स्लो हो गए. वहां पे फकर बॉल हार्ड ही रहेगा. इट्स नॉट लाइक हमारी तरह की पिचेस नहीं है. बट देन व्हाई स्लो डाउन? बिकॉज़ ऑफ फिटनेस मे बी. या कुड बी. ये शोएब का एक्सप्लेन देखें और ये इनकी इनिंग्स भी आपको अभी स्क्रीन पे नजर आएगी ब्रैंडन किंग की. मुझे ये लगता है कि जब आप ओपनर को नीचे लेके आते हैं तो उसको आई गेस स्टार्ट मिल भी जाए तो थोड़ी सी समझ नहीं आती है, क्योंकि ब्रैंडन किंग जो है वो ओपनर है और इनमें बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं जो ओपनर्स हैं, जैसे एवन लुइस है और ये ब्रैंडन किंग है. इन्होंने ओपन नहीं की दोनों ने, ये हैं ओपनर्स. राइट. लेकिन वो मेरा ख्याल है हिटमायर वाला जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा धचका लगा है, तो वो कॉम्बिनेशन उनको समझ नहीं है कि हम क्या करेंगे इसका, उनको समझ नहीं है. मुझे ये एक चीज़ और बड़ी जो है ना वो हैरत अंगेज़ है, वो ये है कि नोइंगली कि कंडीशंस ऐसी हैं और यहाँ पे मीडियम पेसर्स जो हैं वो अर्ली ऑन उनको ऑफ द पिच स्विंग मिल रहा है या सीम मिल रहा है, तो होल्डर से नया बॉल करवाना चाहिए था. वो एक इनमें वाहिद बॉलर थे कि जिनका लाइन और लेंथ बहुत अच्छा है. लेट लेके आया और उन्होंने देखें लेट लाने के बावजूद भी उन्होंने 4 ओवर्स में 23 रन दिए. तो इट शोज के, और अगर हम देखें तो उनके 3 बैट्समैन आउट हुए, 3 मतलब टोटल 3 ने खेला है. हाँ, और आज उन्होंने एक और चंद चढ़ाया है कि आज वो काइल मायर्स को बॉलिंग नहीं दी पावर प्ले में और दी है तो ओडियन स्मिथ को दी है जिसका वर्स्ट इकोनॉमी रेट है पावर प्ले में. वो उनसे भी ज्यादा जी ओडियन स्मिथ. तो ये मेरा ख्याल है होल्डर से पहले और नए बॉल से उनका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स जो आउट करता है, स्पेशली उन पिचों पे जहाँ बाउंस मिल रहा है और उसका बड़ा ज़बरदस्त सीम भी लगता है और उसका बड़ी एक नेगिंग लेंथ है. टेस्ट मैचेस में या वनडे में हम लोग दुआ कर रहे थे कि यार होल्डर ना आए बॉलिंग पे. I know. Normally he gave you nothing as a batsman. But you guys will agree with me, all of you. It's kind of quite sad. Yes. Because we love watching West Indies cricket. We love West Indian people, the way they played the cricket with flair. Something different, but वो इस वर्ल्ड कप में नजर नहीं आया. Absolutely. And जो आपने बात की आपने बड़ी सही की. Look at the amount of love and affection that Pakistan has for Sir Viv Richards every time he comes to the PSL. Absolutely. For Darren Sammy, for DJ Bravo, for all the players that have played in PSL or visited here. And there is that thing. I think एक बड़ा important point है कि वेस्ट इंडीज की टीम क्रिकेट स्ट्रगल क्यों कर रही है मोस्टली इन T20 फॉर्मेट. एक तो यंगस्टर नॉट बॉदर्ड एंड प्लस उनका डोमेस्टिक T20 कोई नहीं है. उनका CPL है, लाइक पाकिस्तान हमारा नेशनल T20 है, इंडिया का मुश्ताक अली है, बाकी टीमों के भी हैं, बट उनका नेशनल T20 नहीं है. वो सिर्फ CPL खेलते हैं एंड दैट्स इट. सो दे नीड टू फाइंड टैलेंट क्विकली. They do. Anything you'd like to add? Most entertaining crowd of the world is from the Caribbean. बस अगली दफा लेकर जाना है. मतलब देखें ये कि वो कितने पैशनेट हैं. ना कि सिर्फ प्लेयर्स, इवन जो लोग आते हैं ग्राउंड में देखने के लिए, बट इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड आई स्वेयर आई हैव बीन प्लेइंग इन द कैरेबियन, द अमाउंट ऑफ टैलेंट दे हैव इज अमेजिंग. आई विश कि वो आधा भी इसको यूटिलाइज कर. बट देखना CPL में भी प्लेयर्स लाइक स्टिल दे आर प्लेइंग. आई मीन प्रॉब्ली दे परफॉर्म देयर. ब्रावो ले लो, पोलार्ड ले लो, रवि रामपाल अभी तक खेल रहे हैं यार. सो यंगस्टर्स कहाँ से आएंगे? सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. ऑल्सो वसीम भाई वो ना लेड बैक हैं, लेकिन उसकी जो मेजर रीजनिंग है ना वो ये लीग्स हैं.
हाँ लीग्स भी हैं और दूसरा ना दे लीस्ट बॉदर्ड Island व्हेन इट life. कम्स डाउन टू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. वैसे ही वो डिफरेंट आइलैंड्स हैं. Islanders laid But back. they were the same in the 90s, 80s, हाँ, 70s. ये They that is a ruled the very world. interesting thing. ये फिर अगर लेकिन ये है उस तो वक्त फिर पे- उसको उस क्या वक्त था? पे लीग्स नहीं थे. Now they have enough opportunities and in fact earning more money as okay. compared to what you So earn. it is economic reasons जिसकी वजह से dilute हो गया वो national spirit और to spirit to achieve अब greatness. देखें ना एक वो उनका डॉक स्मिथ जो वो हम लोग सेम टीम से खेलते थे तो Yeah, उसका Smithy. Yeah. उसका कॉन्ट्रैक्ट था $6 लाख का आईपीएल में. तो वो वापस आया, उसने $5 लाख की ना रेंज रोवर ले ली. अच्छा फॉरेन आते साथ मैंने उसको कहा कि यार मतलब तू तू- कोई तूने घर कहा नहीं ले या उसको? कोई चीज शेबी- ले पहले. उसने कहा नो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो. शेबी, तूने वेल उसे दिस कहा इज नहीं? व्हाट आई लव अबाउट. कि एक प्लाजा बनवा लो. हाँ मैं वही कहना चाहता तू प्लाजे च इन्वेस्टमेंट कर देनी थी. रेंट आंदा रे भाई. हाँ रिकरिंग इनकम जो है उससे आती रहती. Well, you know, actually we should at some point also discuss this because I do believe that a lot of young players don't understand how to manage their finances and then Yeah. How what Very God simple. forbid कोई अगर आपको इंजरी हो जाए जिससे आपका करियर खत्म हो जाए तो there needs to be some kind of thing, and whether the boards actually have something like a pension scheme or something that sustains these well there should be. We can have a There discussion should of be, that, but the best advice I could give, the mistakes I've been through as a young kid, as a young sportsman, hire a professional. yes to Hire a manage- professional, Absolutely. pay him, he will or she will exactly tell you how to invest your money. yes And yes you've given me an advice as well, जो मैं उस पे क्या रहा. थी? I don't अल्लाह का remember शुक्र है और अभी सुकून है थोड़ा सा. Okay. वो ये था जब मैं टीम में आया तो वसीम भाई ने मुझे एक एडवाइस की. उन्होंने कहा देख बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो बोलेंगे इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लो, इसमें कर लो, बट डू वन थिंग. जैसे ही पैसे जुड़ें उसकी प्रॉपर्टी ले लेना और छोड़ देना, भूल जाना. बाय द टाइम यू क्विट क्रिकेट वो साथ खड़ी होंगी. और उसके बाद कुछ नेक्स्ट लाइफ में प्लान करना. और वो Because advice- what I've learned in our culture, there are a lot of people do come to you कि यार पैसा दे दे, business शुरू करता हूँ मैं. But one thing I've learned, why would I make money for you with your money? I will enjoy your money if you give it to me. I've been there, done it, done. ये गलतियाँ कर चुका हूँ मैं. इसमें मैं वो मुझे याद आ गया ये सुनाया था कि कर्जे हसना दे दो. उन्होंने कहा कर्जे हसना की है. कहते वो कर्जा जेड़ा तुसी मैनू दे दो, जब तुसी मेरे को वापस मांगोगे तो मैं हंसांगा. Is that the athlete thing की like life है this? ये ऐसी कोई चीज है कि तूने बनाई है? पाकिस्तान में ऐसी goodness me with that dosto that time where the way forward come brought to you by Bank Al Falah. Well, the way forward, one way forward is build a plaza as और buy a कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई है. construction बहुत महंगी होगी. अच्छा चूंकि हम जनरली टीम्स के बारे में बात Yeah. करते हैं कि उनकी वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए. Let's say for a second now talk about the way forward for the entire cricketing fraternity, especially when it comes to taking care of players that get injured. What should be the way forward for that? India, Australia, England, they have the systems. They know उनका अगर मेन प्लेयर है, लाइक मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब पैट कमिंग्स शुरू में आया था, he had a back injury और उसको आई थिंक साल 1.5 या 2 का रेस्ट का था, रिहैब का था. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड kept him on his contract, a contract, whatever that is, about $1 million plus or $2 million a year. 2 साल उसको वो दिए, and now he's one of the best players and their captain. And this is an investment you do on your players, and that's what they deserve. And Pakistan Cricket Board को, I mean chairman साहब रमीज ने कहा है कि वो will make sure कि state of the art rehab center बने. It's never too late, but this should have been done 20 years ago. Very true. Why are players still? अगर यही शाहीन अफरीदी दुनिया में कहीं होता तो उसको वो वूल में रखते, रुई में रखते कि इधर खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए. We should learn to look after our assets. They are our assets, our players. We have to invest in them. We have to look at them. अगर नी खराब है तो he should visit the best surgeon in the world wherever he is. Yeah, that is really truly the way forward. And well, that was the way forward, brought to you by Bank Al Falah. And with that, खुशखबरी ये है आप सब के लिए खुशखबरी है कि क्वालिफायर्स खत्म हो गए.
ठीक है ना। तो अब हम जो है वो मेन राउंड की तरफ जाएंगे, सुपर 12 की तरफ। जरा नजर डाल लेते हैं कि सुपर 12 एक दफा फिर ये दोनों ग्रुप्स देख लेते हैं। 2 ग्रुप्स बने हैं सुपर 12 के, कि ये किस नौयत के ग्रुप्स बने हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। लेकिन ये चूँकि खुशखबरी है कि ख़त्म हो गए हैं ये ग्राफिक्स हैं, चल पड़े हैं मशीन से। थोड़ा सा टाइम लगता है, तारों में से गुजर के जो है ये आपकी स्क्रीन तक पहुँचते हैं और वो ये देखें पहुंच गए। देखा, मैंने आपको बोला था पहुंच जाएंगे। ग्रुप 1 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आयरलैंड। ग्रुप 2 में इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे। वैसे आई मस्ट से पाकिस्तान ग्रुप लुक्स गुड यस टू मी एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फैंस को भी। बट यहाँ पे पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा, ये इजी नहीं लेना हमने। इट डजंट मीन वी क्वालिफाइड, वी हैव टू प्ले दीज गेम्स। हमें एक मैच, एक बड़ी टीम से मैच जीतना पड़ेगा, इंडिया से या साउथ अफ्रीका से, तो हमारे बहुत ब्राइट चांसेस बन जाएंगे। I suppose you should go कि I'm going to win every game, man. 5 out of 5. That should be the attitude. The best is to win the first game. Exactly. That would be. उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है ना, unstoppable. They cruise. Inshallah. Misbah, now look at that group 1, England, New Zealand, Australia. You think Afghanistan and Sri Lanka would be happy in that group right now? Probably not. I think so. I think so. That is a tough pool. Yeah. लेकिन थोड़ा सा वो ये ज़रूर देखेंगे कि उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो उनको हेल्प कर सकती है वहाँ पे। ऑब्वियसली इंग्लैंड इस टाइम पे अगर आप देखें, मेरे ख्याल में वन ऑफ द टफेस्ट टीम वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट में। न्यूजीलैंड दे हैव देयर ओन वे, वो उस तरीके से उस फॉर्म में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट, टिम डेविड जब से वो नीचे आए हैं और जिस तरह का उनका लोअर मिडल ऑर्डर हुआ है, टॉप ऑर्डर तो पहले ही स्ट्रॉन्ग था, बॉलिंग उनकी कंडीशंस में वैसे ही उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, आई थिंक ये दोनों टीमें बहुत ही बैलेंस लग रही हैं, बहुत ही ख़तरनाक लग रही हैं और जिन कंडीशंस में खेल रहे हैं इनके अगेंस्ट कोई भी टीम जो है वो really have to play out of the आसानी में नहीं skin होगी to win against these two. न्यूजीलैंड इनको वहाँ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जो है ना टफ टाइम देगी दोनों टीम्स को। थोड़ी सी उनकी बॉलिंग ना, बॉलिंग आ गए हैं, वो मिलने भी आ गया है, मिलने आ गया है, फर्गसन भी आ गया है, लुकी वो आ गया, लुकी भी आ गया है, तो अब But माहौल बन गया उधर भी। अच्छा हाँ उनका माहौल बना। सिर्फ बैट्समैन जो है ना उनके, स्पेशली उनका कैप्टन केन विलियमसन, he hasn't been in good form, he's been struggling, तो वो एक ऐसा कंसर्न एक एरिया है उनके उसमें, क्योंकि वो खेलता भी ऊपर के नंबर्स पे, नंबर 3 पे। इसने वहाँ पे फाइनल में आखिरी मैच में रन किए हैं वहाँ पे, बट ओवरऑल जितना भी रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया में जाके नॉर्मली दे स्ट्रगल। They do. इवन ऑस्ट्रेलिया से जब खेले हैं तो उनकी बैटिंग भी उनको मुसीबत हुई है वहाँ पे। well, दोस्तों खुशखबरी, क्वालिफायर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी ट्रीट हमारे लिए जो है उसका बंदोबस्त किया हुआ है। वो यूँ है कि मुंह मीठा कीजिए, जलेबी मैंने मंगवाई, जलेबी। आई थॉट क्योंकि हमारा ये ख़त्म हो गया, मिस्बा प्लीज़ आपकी डाइट के मुताबिक, और ये तो आपको नहीं मुंह मीठा तो करना ही पड़ेगा। बेशक आप सूंघते रहे इस जलेबी को शोएब मलिक, मगर ये हो नहीं सकता कि जलेबी आए और हम ना खाएं। देख रहा है यार, ये ना खाया करें। सूंघने वाला अच्छा आइडिया दिया आपने। I got jalebis for all of us. If anybody can on this table do without jalebis, that be you. वैसे ये प्लेट छोटी है इनके लिए। वसीम भाई, ये नहीं पता तुम्हें मैंने कितनी नीचे रखी हुई है यहाँ पे जलेबी का। There's a lot more jalebi down here where I got these plates out from. सारी प्लेटें इस खुशी में खा लेनी चाहिए कि थोड़ा नहीं बच जाए ना। हाँ, I know. 3 दफा डिग चुका है, ऐ फरिश्ते, सीधे फरिश्ते 3 दफा गिर चुके हैं भाई ब्रेक में। कहने सीधे फरिश्ते। I mean, आगे कोई टेबल हो या कोई गड़ा हो या कोई चीज़ हो, I can understand. प्लेन फरिश है, वो तो डिग पे पाए। सर जहाँ वसीम भाई स्पेशल लोग स्पेशल काम करते हैं, खड्डे पे तो कोई भी गिर सकता है ना। सीधे फरिश। फिर इसने उसके बाद चीख मारी है, यार ये क्या गीला कर गया है, and nobody, he was just dry, bone dry. ये कोई मेरा हाल। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं द पेविलियन, आइए चलते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स ARY ज़ैप ऐप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फख्र आलम और आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY ज़ैप ऐप। और ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कि मुझे किस किस्म का रगड़ा दिया जा रहा था हर तरफ से। मेरे आइकॉन्स, हीरोज, सेलिब्रिटीज़, लेजेंड्स
मुझे रगड़ा दे रहे थे. So I've got them with me in the studio. Shoaib Malik, Ms. Paulat, and the Sultan himself, Wasim Akram. हम बात कर रहे थे qualifiers का. Qualifiers are done now. We go into the Super 12 stages in the ICC Men's T20 World Cup, and things are going to get really exciting from here onwards. It's the business end of the tournament, and with that, all the jalebi and the tea is not going to be enough for the fun that is ahead. Talk about what's going on right now. इस वक्त हमारे पास जो है एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, और हमारे एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में. उनके पास जो क्यूरेटर हैं माइकल सेल्वाटोर, उनका इंटरव्यू है शाहिद साहब के साथ. आइए ज़रा सुनते हैं. I have with me a very special guest today, Michael Salvatore, who knows the MCG pitch like we know her here on the head. He knows each and everything, so he's planted the drop-in pitch. We will get to know how excited, Michael, you are on preparing a pitch for an Indo-Pakistan first ever T20 match in a World Cup. Very, very excited. We're going to have a sold-out crowd here, and I think the atmosphere is going to be something very unique and something very special. And tell us something about a drop-in pitch, because it's a very unique idea, and it's a different idea from what we have in Pakistan. Correct, yeah. So we have drop-in wickets here at the MCG. So for the cricket season, we bring the wickets in and they sit on some sand and bed in nicely. And then once cricket finishes and we go to football season, we have the ability to take them out and put them up in our special wicket nursery where we can look after them and maintain them. And what we should expect from this pitch? Will it help Pakistan or India? Look, I don't know. I think it'll be a fair wicket for both teams. Our T20 wickets are usually really consistent through the whole match, so it should make for a really good game. And when did you plant this pitch? From where you brought it? We brought it from our wicket nursery, which is just outside the ground. So it's literally a few hundred metres outside the ground, so we can monitor and maintain the wickets all year round. And the wickets were installed 3 weeks ago, so yeah, very recently. And what do you know about Indo-Pakistan cricket rivalry? I know that it's more than a game, and I'm really looking forward to witnessing that and experiencing the full atmosphere. I know they haven't played each other for a while, so I think it could be on here. Could be very good. And who are your favourite players from both sides? Well, one of my favourite players ever, it's showing my age a little bit, but Wasim Akram was a phenomenal player, and I've been lucky enough to meet him a few times. He was, probably my favourite from Pakistan. And India, well, that's a tough one. I do like Ganguly. I have to admit, I really like his fighting spirit, and that series when Australia, India made Australia made India follow on, and then India ended up winning. I think that's one of the best series ever. So yeah, I do Ganguly for India and Akram for Pakistan. We have legend. You are popular everywhere, Wasim Akram. He is in the studios. What you want to say? What you want to give a message to the legend? Wasim, I still remember I was asked you, how do you bowl an outswinger? And you said, just bowl a fast off spinner and that should do it. So I try and teach my boys that. So thank you, Wasim. That was Michael Salvatore. He's prepared the pitch. He's looking after the pitch, and hopefully it will be a cracker of a game at the MCG come Sunday. All right, Shahid there. Thank you very much. Michael Salvatore, a fan of the Sultan Michael himself. must have been very young. Hi, Michael. Thank you very much. And thank you for preparing this beautiful ground and pitches for the biggest clash in this World Cup, Pakistan versus India on Sunday. Yeah, this is going to be वो इसके ऊपर हमने बड़ी बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू होगी हमारे पैनल के साथ. हम बात कर रहे थे ज़रा फील्डिंग के हवाले से थोड़ा. Earlier we were talking about Jaunty Rhodes. Shoaib, you wanted to share a story, and then I'll share a story about Jaunty. मेरी स्टोरी जो है ना, I was playing for Gloucestershire County, और उस टाइम पे 2 प्रोज खेल रहे थे, और सेकंड जो थे वो जॉन्टी रोड्स थे. In playing 11 you allowed 2. जी. तो ग्लॉस्टरशायर काउंटी में एक बहुत गन फील्डर आया. सो पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. राइट. तो अब जो जॉन्टी थे, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, सो मैं ड्राइव नहीं करता था. जॉन्टी रोड्स और मैं जाते थे होटल वापस ग्राउंड से. तो मैंने ना जॉन्टी को बोला, अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो
do you feel anything when people say he's the best in the world? So he said, tomorrow we'll have a challenge and let's find out कि कौन जो है वो बेस्ट है. तो चैलेंज ये हुआ कि बैकफुट पॉइंट के मजे की बात ये है कि दोनों फील्डर्स वो भी और ये भी और जॉन्टी रोड्स भी तो जो चैलेंज सेट हुआ वो ये था कि एक स्टंप लगी हुई थी और ये दोनों बैकफुट पॉइंट पे खड़े थे और 6 पिकअप्स करके हिट करने थे बॉलर एंड पे. जी बॉलर एंड पे सिंगल स्टंप लगा हुआ था. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग. आई विश कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी होती और मैं वीडियो बनाता उस चीज़ की और मैं अपने पास रखता. उस गन फील्डर ने हिट 5 out of 6 वो और जॉन्टी ने 6 मारे थे. Wow. And that's Jonty Rhodes' magic. Well, and I believe that because that is how he was. Now imagine Jonty Rhodes has retired from he was cricket. phenomenal. He was. He was. Imagine Jonty Rhodes has retired from cricket. 2017 I had produced a show called Cricket Superstar जिसमें हमने नसीम शाह को भी फीचर हुए थे. 24 लड़कों को हमने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया टाइप के फॉर्मेट के ऊपर जो है वो रखा था. जॉन्टी रोड्स उसमें एक जज थे. जॉन्टी रोड्स जो थे और सारे वी हैड सर एंडी रॉबर्ट्स, वी हैड जॉन्टी रोड्स, वी हैड डैनी मॉरिसन एंड डेमियन मार्टिन. ठीक है. और ये नया नाज़माबाद का जो ग्राउंड है कराची में वहाँ पर इनका कैंप लगा हुआ था और वो पूरा शो जो था रिकॉर्ड हो रहा था. तो फील्डिंग के एक ड्रिल में जॉन्टी ने कहा कि मैं एक ड्रिल करने लगा हूँ, ये सेट करके मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों ने मेरा टाइम बीट करना है. आई एम 45 प्लस, you guys are all 16, 17, 18, 19, 20, you guys are much younger, much faster than me and what. तो वो ड्रिल कुछ ऐसा था कि उन्होंने कोन्स रखी, 1, 2, 3, 5 कोन्स रखी और हर कोन के साथ एक बॉल रखा और उसी तरह एक स्टंप लगाया उन्होंने जाके. उन्होंने कहा ये आपने पिक करनी है बॉल, पहले ये वाला बॉल, फिर क्रॉस यूँ जाना है, ये वाला बॉल, फिर क्रॉस इधर आना है, इस बॉल को पिक करना है, इसको पिक करना है और हिट करना है अपने स्टंप को. तो उन्होंने ये एग्जीक्यूट किया ड्रिल वसीम जी. एंड ही हिट द बॉल एवरी टाइम ऑन द स्टंप. देयर वर 5 balls that they placed and he did this under about 17 seconds, 17 or 18 seconds. The fastest young man that we got could manage to do that in about 44 or 45 seconds, twice the time. Really? That is exact, and we have that on record. He's something different. Yeah. He's not human as far as fielding concerned. Really बहुत enjoy करता था. He loves his fielding. Even now, he just loves the whole idea of fielding. आपके भाई बड़ी दफा रन आउट हुए हैं भाई से, जॉन्टी भाई से. Every time. आप दुक्का ले रहे थे या सिंगल भी हो गए? सिंगल दुक्के का कितने मौका मिलना चाहिए. Always single. Well, that was Jonty Rhodes, unquestionably. बाउंड्री पे तो वो जाता ही नहीं था. अरे शुरू में बैकवर्ड पॉइंट पे हमेशा इंच करके वही खड़े रहे थे. हाँ उधर लगती थी विकेटों को. मजे की बात पता क्या है? मजे की बात यह है कि इंजी भाई को कहते हैं कि उनके साथ रनिंग मुश्किल है, लेकिन मैं इंजी भाई के साथ बहुत बैटिंग की, बहुत पार्टनरशिप्स लगी आज तक. जहाँ तक मुझे याद है ना वो कभी रन आउट हुए ना मैं हुआ कभी. हाँ, I think Inzama would be a great person to run with. और क्लोज सिंगल्स भी लिए हैं. नहीं वाकई इंजी was quite okay running between the wickets. तो एक बारी मेरे नाल ट्राई कर, बड़ा मजा आएगा. मैं भागता ही नहीं हूँ. भाई और मिन्नू ही ਤੁਹਾਡੇ वाला भी सिंगल मिन्नू ही लेना पैना. कहीं तो कह रहे मैं भाग नहीं. चल शिवी भाग. ऑलराइट दोस्तों. वैसे कैसी है आपकी चाय ये बगैर चीनी के? बगैर चीनी के चाय बहुत अच्छी है. क्योंकि आपने 13,000 जलेबियाँ गई हैं माशाल्लाह. वैसे यार मेरे खाने पे नजर डाली हुई है सबने. अल्लाह तुम लोगों को पूछेगा. वैसे आप चलते हुए इतना स्लिप होता है तो भागेंगे तो क्या होगा? अरे वाह वाह मिसबाह, बहुत अच्छे. रिंग लें. ओके. Are you missing Waqar bhai? No, I'm not missing Waqar at all because he would have ganged up with you guys and also gone after me. So I'm happy there's one man less right now. पाकिस्तान टीम की तरफ चलते हैं दोस्तों. पाकिस्तान टीम जो थी वो आज प्रैक्टिस कर रही थी. बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है, आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं. एंड देन वी गोइंग टू ब्रिंग मिसबाह एंड शोएब बोथ इनटू इट. लुक एट दिस, लुक रिवर्स स्वीप प्रैक्टिसेस. ओके, रिवर्स स्वीप जी, रिवर्स स्वीप प्रैक्टिसेस. और सिर्फ एक नहीं, हैदर अली और हैदर अली पहले सीधा तो खेल ले. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि हैदर अली पहले सीधा खेल ले फिर रिवर्स स्वीप पे आए. ही इज गॉट टैलेंट मैन. आई फील फॉर द बॉय. ही जस्ट गॉट टू बी सेंसिबल अबाउट हिज बैटिंग. जब ये इंग्लैंड के खिलाफ जब अभी ये आए तो मार्क वुड किस लिए आया था? एक आधे ओवर के लिए आउट करने आया था ना इसको और आसिफ को. सो आई टेक अ चांस ऑन द बॉलर
जिसने ऑपोजिशन लगाया कि आपको आउट करे, ऐसे ही। जस्ट गो सिंगल्स एंड देन गो, या प्रैक्टिस। ये कहाँ पे प्रैक्टिस? ये मेलबर्न के बाहर जो नेट्स हैं ग्राउंड, बिल्कुल बाहर सादी ग्राउंड के साथ वहाँ पर उसके नेट्स हैं। सो इंटरेस्टिंग। मिसबा, व्हाट शुड बी द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ रिवर्स स्वीप? आई मीन फॉर यंग पीपल जो जवान हमारे देख रहे हैं, जो खेल रहे हैं क्रिकेट आजकल में, उनको व्हाई डोंट यू गो ऑन द अदर? इसको क्वेश्चन को मैं भी थोड़ा आगे कर जी जरूर प्लीज। कि स्वीप दो तरह की है, जैसे डकेट मारता है, अगर वो ऐसे मारता है अंदर को तो फील्डर जब अंदर करते हैं फिर वो ऐसे बाहर चला जाता है, वो जरा एक्सप्लेन करेगा प्लीज? Yes, please. So Misbah Haq will give us sweep, reverse sweep tips here, which is important. और आज हमने देखा है कि ये 2-3 शॉट्स हैं वो जिम्बाब्वे के बैट्समैनों ने भी, वेस्ट इंडियंस ने भी रिवर्स खेलने की जो है वो खेले, बल्कि सक्सेसफुली खेले, दे प्रोड्यूस रन्स. So we've got Misbah Haq here telling us how to do that. Misbah. जो वसीम भाई आपने बात की है कि आपने स्वीप को या रिवर्स स्वीप को कहाँ मारना है, अंदर मारना है, बाहर मारना है, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? से फील्डर मेरा अंदर है, आप आ गए तो मैंने अंदर कर लिया। जब आप उसको अंदर मारना चाहते हैं, स्पेशली रिवर्स स्वीप, तो आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बॉल को वो लाइन थोड़ी सी आपकी जो टांग जाती है वो इस तरफ जाए, फ्रंट वाली, ताकि उसको आप अंदर मारें। तो डू यू कवर द स्टंप्स, यू मूव टुवर्ड्स ऑफ स्टंप और नॉट? वो अगर मैं इधर अगर जाऊंगा और बॉल की लाइन थोड़ी सी इधर है तो फिर मैं इधर बॉल होगी, यहाँ से मारूंगा तो वो बाहर जाएगी, या अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो फिर मैं उसको मीट करूँगा तो वो अंदर जाएगी। ओके। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वीप मारते हुए कि जैसे पुल पे आपकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, इस तरह स्वीप पे भी आपकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। जितना बॉल क्लोज हो जाएगा, क्रैम्प हो जाएंगे आप, तो मिस होने का चांस है। और दूसरा, दूर जब होगा, एक तो आप उसको आपकी आर्म्स खुलेंगी, दूसरा आपकी आई के बिल्कुल नीचे होगा। जब जितना वो नीचे आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा, आप ब्लाइंड हो जाओगे। ओके। तो यू सेइंग कि बॉल को पहले आपने बल्ले से पकड़ना है? नॉर्मली आजकल क्या करते हैं, अगर बॉलर आपको यहाँ पे बॉल कर रहा है इस तरफ, तो बैट्समैन चेंज भी नहीं करते, वो यहाँ से नॉर्मली यूं जाते हैं और यहाँ से मारते हैं, वो बाहर चला जाता है। तो इसमें रिस्क तूने अभी मारा, दोबारा दिखाएगा जरा रिस्क कितनी तूने यूज़ की और कितनी तेज़ी से की? जी, ये इसमें आपको चेंज भी, कुछ बैट्समैन चेंज करते, कुछ नहीं करते, कि जैसे मैंने यूं किया और मैंने यहाँ से ये मार दिया। ओके ओके, पूरी पावर से मारा है। इस तरह अगर आपने अंदर मारना है तो फिर मेरा जो होता था नॉर्मली वो ये होता था कि पहले मैं ये लो हुआ हूँ और मैंने कोशिश करना कि ये मैं यहाँ लेके जाऊँ ताकि मैंने इसको बैठ के मैंने यहाँ से ऐसे मारूँ। ओके। तो बेसिकली जैसे आप नॉर्मल स्वीप मारते हैं वो भी इसी तरह है। अगर मैंने उसको अंदर मारना है, ये फील्डर बाहर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बॉल को मैं इनसाइड लूँ अपनी इस टांग के। मैं टांग को यहाँ ले जाने की बजाय थोड़ा इधर लेके जाऊँ और यहाँ से मैं इसको ऊपर से ये मारूँ, ये अंदर जाए, ये अंदर जा रहा है, अंदर जाए। या अगर ये फील्डर अंदर है या मैंने स्लॉग स्वीप मारनी है, तो मैं इस टांग को क्लियर करूँगा। ओके। इसको मैं उसकी लाइन में लेके नहीं जाऊँगा, इसको मैंने यहाँ किया है और इसको मैं सीधे ही ले जाऊँगा ताकि मैं इसको ये मीट करूँगा तो ये बाहर जाएगी। ये स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान अंपायर के इधर जाएगी, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जाएगी। और यही अगर सीधी टांग लेके जाता हूँ और थोड़ा सा बाहर बॉल है, तो देन इट्स अ स्लॉग स्वीप टुवर्ड्स मिड विकेट या वाइड मिड विकेट। एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच मिसबा, रियली ट्रूली अप्रिशिएटेड। आई होप आप लोग जो घर पे देख रहे हैं, लॉट ऑफ यू यंग क्रिकेटर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। दिस इज़ द आइडिया दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुएब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? वुड यू लाइक टू? मेरे स्वीप और ये रिवर्स और ये स्वीप मेरे शॉट्स नहीं है कि बैटिंग डिफरेंट है, लेकिन हाँ, जहाँ बॉल टर्न हो रहा हो और आपसे सिंगल नहीं निकल रहा है क्योंकि कंडीशंस टफ हैं, बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है, तो फिर मैं स्वीप ट्राई करता था। और ये है कि मैं ऐड कर सकता हूँ थोड़ा सा। मोस्टली बैट्समैन क्या होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर से जब आप एज अ राइट हैंडर बैटर लेग भी 4 होते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा जी जरूर, प्लीज गो अहेड क्विक, दैट इज वेरी वेरी गुड। वी कैन ऐड, ऑलवेज ऐड टू थिंग्स। सो लेफ्ट हैंड स्पिनर की आप खास तौर पे बात कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड स्पिनर राउंड द विकेट ऑपरेट कर रहा है वो आपको, और तो वो बॉल स्वीप मारते हुए एलबीडब्ल्यू के जो चांसेस हैं उसके बारे में, राइट? ये है
जब आप बैक फुट पे खेलते हैं लेफ्ट आर्मर को, ये उसके बारे में है। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली जब लेग बी फोर होता है बैट्समैन जी, राइट हैंड बैट्समैन अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो जब लेग बी फोर होता है स्पेशली प्लेइंग ऑन द बैक फुट, वो क्या करते हैं कि टॉल रह के यूं जाते हैं राइट, और उसमें एक मिस्टेक करते हैं। वो ये करते हैं कि आपका पैर जब आप स्पिनर को खेल रहे हैं तो ये यूं जाना चाहिए पीछे, नॉट यू, नॉट यूं। ये पेसर के लिए, पेस को जब आप खेलते हैं तो आपको लाइन में जाना पड़ता है क्योंकि उसका बॉल तेज़ आता है, तो ये मिस्टेक हो जाती है। ये पहली मिस्टेक। और सेकंड मिस्टेक ये है कि एक तो टांग उधर लेके जाते हैं। ये डांसर भी बुलाया हुआ है आज। ओके, फहद मुस्तफा थे, वो आपको बता रहे थे कि वो Hello? भी आए हुए हैं सेट के ऊपर। I thought who is this dude? मैं समझा कि आज आपने हायर किया है कोई डांसर। तो फहद मुस्तफा फ्री में थोड़ी आता है, हायर करना पड़ता है भाई उसको। सुपरस्टार आए थे भाई। नहीं, लेकिन मेकअप नहीं था तो फ्री में लग रहे थे। अच्छा, तो फर्स्ट मिस्टेक प्लेइंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर ऑर्थोडॉक्स इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट। आप एक तो टांग यूं ले गए और दूसरा यूं गए। अच्छा, सीधे ऊपर। जब आप यूं जाते हैं एक तो आपको लेंथ का आइडिया नहीं होता, ना लाइन का होता है, तो वो ठक करके जब बॉल स्किड होता है और यू आर ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स, तो बैट आपका इतना जल्दी आता नहीं है नीचे। स्पिनर को आपने बैक फुट पे खेलना है, लेफ्ट आर्मर को, ये टांग आपकी पीछे यूं जाएगी, यूं जानी चाहिए ताकि आप हर लेंथ को असेस कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो उसके लिए जब स्टांस क्या लेगा तू? लेग स्टंप स्टांस, लेगा? कोई भी बैट्समैन का कैसा भी स्टांस है, कोई नहीं, आई मीन यूं खड़े लेग स्टंप होता है। लेगा, मिडल लेगा कि वो लेगा? मैं नॉर्मली लेग स्टंप पे खड़े होता हूँ। ओके। मैं लेग स्टंप पे इसलिए खड़े होता हूँ और ये मेरी फ्रंट लेग थोड़ी सी ओपन इसलिए होती है कि मैं लेग बी फोर वाला एलिमेंट दे ही नहीं रहा स्पिनर को। हाँ, आई एम शोइंग माई स्टम्प्स, बॉल इन द स्टम्प्स, मैं मनूवर कर सकता हूँ, इधर खेल सकता हूँ, कहीं भी खेल सकता हूँ स्पिनर को। और बैक फुट पे जाने का सबसे आइडियल अगेंस्ट एनी स्पिनर, जब आपकी टांग बिल्कुल सीधी यूँ पीछे जाती है और आप थोड़ा सा बेंड है, आपका फ्लो आता है, आप कोई भी शॉट खेल सकते हैं। आप कट शॉट खेल सकते हैं, आप बैक फुट पंच खेल सकते हैं, आप उसको आके यहाँ ये खेल सकते हैं, आप पुल शॉट खेल सकते हैं। मेक श्योर कि आपका ये जो राइट वाला पैर है वो अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे स्टंप्स कवर हो जाएं, वो पीछे आना चाहिए और बॉडी थोड़ी नीचे रहनी चाहिए। एक्सीलेंट, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। दोस्तों, इसके अलावा एक खबर है बल्कि वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे बैट्समैन शान मसूद जो हैं वो आज नेट सेशन में उनके सर पे गेंद लगा ओवर का, और ये स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। एक काफ़ी सीरियस इशू था, ही वाज डाउन, बहुत ज़ोर से इनको बॉल लगा। बॉल इस तरीके से लगा कि नवाज़ प्रैक्टिस कर रहे थे नेट में साथ वाले पे और उन्होंने शॉट मारी, एंड एट द टाइम शान पैडेड थे लेकिन उन्हें हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो उनके कान वाली साइड पे देख रहे हैं आपने पानी की ठंडी बोतल उन्होंने रखी है, एंड ही हैड टू बी रश्ड टू अ हॉस्पिटल, और वहाँ पर उनके स्कैन्स हुए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे क्लियर आए हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ओके राइट नाउ व्हाट वी He's back in the hotel and he joined the team, but yeah, it was a scary moment for him and for Pakistan team. So unfortunate accidents, freak accident. Usually उनके नेट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उससे बॉल निकलता नहीं, शायद नीचे से आया बॉल या गैप लगा, but yeah, he's okay. He's okay, yeah, that is it, yeah. I've been through this concussion process. Yeah. मेरे न्यूजीलैंड में बॉल लगा था रनिंग करते हुए और हेलमेट नहीं था मेरे सर पे, और मेरे सर पे लगने के बाद चौका हो गया। तो मैं एक बॉल खेला तो मैंने स्प्रिंट मारा रन लेने के लिए, तो वो एकदम ब्लड सर्कुलेशन जो है लगी है दिमाग में जाके। उसके बाद आई हैड नो क्लू क्या चल रहा था, और ये न्यूजीलैंड का वाक़या है। इसमें सीरियसनेस भी है और इसमें फ़न भी है क्योंकि इसमें स्टोरी एक छोटी सी आ जाती है बीच में। तो मुझसे क्वेश्चन हुए क्योंकि एक एसओपी है, क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम के उल्टे स्पेलिंग से बोलो, 10 की गिनती या 20 की गिनती वसीम भाई, मैं उल्टी जब बोलो। बाहर आया ना तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है, तो फिजियो ने मुझे सिर्फ इतना कहा है लाई डाउन, सो आई लेड डाउन। और उसके बाद ना मैं उठा हूँ और मुझे ऐसे लगा कि 5 मिनट हुए होंगे मैक्स। या तो मेरी आंख खुली तो मैंने उससे ना फिजियो से पूछा व्हाट टाइम इज़ इट, तो उसने पता नहीं कोई 8-9 o'clock बोले, डे एंड नाइट मैच था। तो मैं
for 3.5 hours, I was out. I had no clue where I was, what was happening. कोई आइडिया नहीं था. अच्छा वो आपने जो कहा वसीम भाई, फिर मैं स्पेशलिस्ट के पास लेके गए तो उसने यही क्वेश्चंस किए कि 3 दिन पहले क्या हुआ था, सारी जो चीज़ें थी वो पूछे, नंबर्स पूछे, मैनिपुलेट किया मेरे दिमाग को और फिर चेक किया तो आई हैड नो क्लू कि 3 दिन पहले क्या हुआ है. अच्छा खैर थोड़े से सेशंस हुए. उसके बाद ना सानिया वाज देयर माय वाइफ. तो अब फाइनल टेस्ट हो रहा था मेरा, जिस पे ये डिसाइड होना था कि मैंने टूर पे रहना है या वापस जाना है. उसने एंड में ना सानिया को बुला के ना सामने तो कहता है डू यू नो दिस पर्सन. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स माय वाइफ. तो कहता है यू मेड अ मिस्टेक, यू हैड द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे. तू उन्हें कहना चाहिए तू मेरी चित्रौल कराएगा, वो तेरी चित्रौल कराने की चाहिए. That was not your last opportunity. वाकई चित्रौल होनी थी. Had you denied? and I was away from cricket for about 2 months. मिकी आर्थर थे कोच, तो उन्होंने कहा you got to be away from your profession. That's how you can recover faster. तो मैं फिर उस टूर से वापस आ गया. सो आई मिस्ड आई गेस कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. चलिए अब एक अचानक बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आ गई हैं बहुत सारी बातों की मेरे पास. अब मुझे समझ में आया जो आप कभी कभार मेरे खाने के ऊपर इतने वो करते हैं ना. नाउ वी नो वेयर दिस डैमेज इज कमिंग फ्रॉम. सो दैट इज फाइन. नाउ अब हम आपको बहुत सा लीवे देंगे शो के ऊपर. पीछे से आवाज आई है मिसबा की बदला. ऑलराइट विद दैट वी गोना टेक अ ब्रेक. बट जब हम वापस आएंगे तो आपके आस्क द पवेलियन के सवालात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और अपने लेजेंड्स, एक्सपर्ट्स, आइकॉन से कहेंगे कि उनके जवाब दें. आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, सेन स्पोर्ट्स एंड द ARYZ ऐप. देखते रहिए. मिलते हैं कुछ देर के बाद. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, Sen Sports and the ARYZ app. And with me in the studio are the legends, icons, Shoaib Malik, Misbah-ul Haq and the Sultan of all Sultans, Wasim Akram. दोस्तों आज क्वालिफायर्स जो हैं वो अपने अख्ताम को आप पहुंचे हैं. We have the Super 12 with us. We've shown you the Super 12. We have spoken about the 2 groups in the Super 12. थोड़ी देर बाद हम दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. वसीम एक चीज़ बड़ी जो है वो डिस्टर्बिंग सी है. लास्ट ईयर बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा एंथम था ICC T20 वर्ल्ड कप का. वो गाना था जिस पे आपने और मैंने बहुत एंजॉय, बल्कि मिसबा तक ने हमारे साथ एंजॉय किया था उस पे. लेकिन इस दफ़ा ज़रा मामला कुछ थोड़ा फीका फीका सा नहीं लगा? आई नो बहुत फीका. आई थिंक ICC का बजट खत्म हो गया था. पैसे मुक गए सन. नहीं वो लास्ट ईयर सॉन्ग वाज अमेजिंग. JJ कंसल्टेंट था उनका. ये हुआ है JJ कंसल्टेंट था ICC का. उनका गाना बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे जो प्रोमो बना है JJ के कमरे में 3 रुपए लग गए. Alright, with that we've got interesting thing here. एक एंथम है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. Enjoy. Alright, there you go. That was music for the ICC T20 World Cup, I assume. But we still are missing out on the excitement that we had last year. By the way, the World Cup, 92 World Cup, Wasim. You remember that anthem? I think it was one of the best anthems that we have. The world is coming down, the flags are up. Who's going to be number one? Who's going to take out the cup? हमारे क्रिकेटर ने जब 92 वर्ल्ड कप के बाद हम गए इंग्लैंड टूर पे तो उन्होंने स्टेज पे आके ये गाना गाया. अगर एग्जैक्ट वर्ड्स हैं तो मैं बता दूं उन्होंने क्या गाया. उन्होंने गाया लालापी हु इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. He was on the stage in front of 300 people in Bradford. Oh boy. It happened. जिसने किया उसको पता अगर इसने सुना है तो. बता दे अभी तो बता. No, I'm not. अच्छा चल. All right. Well, बहुत छोटे थे दोनों. प्लीज मेरा एक और टैलेंट तुम्हें दिखाऊंगा जो हम दिखा रहा था तुम्हें. मैं नया जो है मेरा एक जी आप बड़े मैच पे दिखाऊंगा वो टैलेंट. हाँ वो तो 100% क्या टैलेंट है. Let me just drop this teaser. Ladies and gentlemen, you've never witnessed anything like it. It is just spectacular, magnificent, magical, miraculous. चीजें क्यों फेंक रहे हैं? Because it's not. ये तो जब लोग अवाम फैसला करेगी. टैलेंट का फैसला अवाम करती है. अवाम इस चीज़ का फैसला करेगी. जिससे याद आया आज तो पवेलियन अवामी मामला है हमारा और वो शुरू हो चुका है. और जुहेब नाम है इनका, क्रिकेट किंग है और इन्होंने ट्वीट किया एक वीडियो
और शोएब मलिक आपके लिए पैगाम भेजा है कि शोएब मलिक रन आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। He just said कि मैं इंजमाम के साथ कभी रन आउट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी जहाँ तक मुझे याद है इनसी नहीं हुए, आप रन आउट हुए, और वीडियो भी लगा दी उन्होंने साथ में। थैंक यू मेरे भाई, आपने कोई तो जिंदगी में अच्छा काम किया और पहली दफा किया, मजे की बात ये है। अच्छा चलिए, ये तो आप कह रहे हैं, बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे और करते रहेंगे, लेकिन बाकी जो 50 इनिंग्स है उनके साथ है वो नहीं। बट हियर्स द थिंग, आई थिंक इसमें से जो चीज ना करे एक और भी निकल आएगा कोई। नहीं, इस रन आउट में मैंने अभी देखा है वो ट्वीट, फिर मैंने कह देना कसूर इसका है, कसूर इसका है, यू वर कॉट। हाँ, द आंसर वाज कि इंजी भाई कभी रन आउट नहीं हुए, उन्होंने काट के दाओ। But you know, Shoaib, I think the thing that we should take away from this is that look, this is how engaged our fans are with the game of cricket. That they know their history of the game, the trivia of the game, वो minute details जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जो हमें खुद नहीं किसी को याद रहती, you know, and then they dig it up and they bring it out, you know. This is just मुझे याद रहता, लेकिन मुझे भी नहीं याद था। जी भाई तो सिर्फ राव के साथ ही रन आउट हुए हैं वैसे तो। वो टेस्ट मैच वाला रन आउट। अच्छा शोएब मलिक, आपके लिए सवाल है काशिफ जावेद की तरफ से। What is Izhan's strength? Playing cricket with a tennis racket or playing tennis with a cricket? Your son Azan's. Yes. So, what is his favorite sport? Very good question. What is his favorite sport? He loves soccer और किक भी उल्टी टांग से करता है वो, बैटिंग दाएं हाथ से करता है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं है उसके ऊपर के उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स एंटायरली अप टू हिम, बट ही लव्स प्लेइंग सॉकर। और उसने टेनिस नो टेनिस नहीं, वो टेनिस से भी वो क्रिकेट वाला शॉट लगता है जो कि हमसे भी लगता है। मेरा बैक हैंड नेवर स्टेज इन द कोर्ट। अच्छा, वो बॉल बाहर जाता है, हाँ कोई इधर उधर जा रहा होता है, लेकिन ही लव्स प्लेइंग सॉकर। और उसको एक एकेडमी में भी ला लीगा, हाँ ला लीगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। वसीम आपसे सवाल है, सलमान जावेद ये सवाल कर रहे हैं कि आई वांट टू आस्क वसीम भाई, इंडिया के साथ मैच में कौन से 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए आपकी नज़र में, ये जो इस वक्त करंट अवेलेबल? आई सपोज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स हारिस राव, फिर शाहीन अफरीदी एंड नसीम शाह, एंड देन ऑब्वियसली द 2 स्पिनर्स, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर के साथ जाओ, मतलब चौथा आपका वसीम हो इंस्टेड ऑफ लेस बैट्समैन। But I suppose 3 fast bowlers are more than enough on even MCG wicket, because एक तो ओवर रेट का बड़ा फ़र्क आ जाएगा। 4 आपने खिलाया, समटाइम्स मिसबा ने भी उस दिन कहा है और तूने भी इतनी कप्तानी की है कि समटाइम ऑप्शन कप्तान के पास ज़्यादा होना बॉलर्स की, तो यू फॉरगॉट यू नो वो चांस, कई दफ़ा आप खुद पजल हो जाते हो किसको मैंने करानी है नहीं करानी। Right on. And सवाल जी from all of you, और वो ये है कि each one of you, अब्बास से सवाल है, my question is for all the panelists, that which player in your career you feared or had hard time playing against? Wasim, let's start with you. Feared, probably don't get feared. Feared is not the word. अगर आप फेयर ही हो, किसी से डर ही रहे हो, तो फ़ायदा का खेलने का या कुछ करने का ज़िंदगी में। But yeah, they were greats of the game. मैंने जब शुरू किया, Viv Richard, Alan Border, Sunny Gavaskar, Wing Sarkar, Kapil Dev, wholesome, Gooch, all these guys, and then 90s में आ जाओ तो Lara, the Sachins and you know Haydens बाद में आ गए, Ponting, India से Dravid, न्यूजीलैंड का मैं ग्रेट मार्टिन क्रो का नाम भूल गया। सो इफ़ आई हैव टू पिक वन इन वन डे क्रिकेट, आई थिंक द बेस्ट वाज, जो कि थोड़ा सा बैक फुट पर रखता था, वो था गिलक्रिस्ट, बिकॉज he wasn't a slogger or a pinch hitter, he was a proper batter. So interestingly, the next question that I have is from Faisal. Faisal is asking about Gilchrist. Now he's saying, I'd like the panelists to tell us that there was once rumors, or was it a fact, that Gilchrist used to put a half-cut squash ball in his glove. Is that true? पढ़ा है कि उसने एक जिसमें 100 किया था, उसमें उसने गोल्फ, उसने वो जो स्क्वाश का बॉल था वो रखा हुआ था कि उसकी ग्रिप ना मूव हो। आई सपोज दैट वाज द आइडिया। वो वैसे नहीं था पकड़ा जाता, बल्ला मेरे से तो ग्रिप गेंद आ जाए तो कहाँ पकड़ा जाना था। वेस्ट इंडीज में वो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का, और फाइनल मैच में अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि उन्होंने 100 करने के बाद वो शो भी किया था। अच्छा, वो ड्रेसिंग रूम में मेरा ख्याल है बोल के गए हुए थे। So it's basically just to make sure that the blade remains in one place and वो okay, that's that grip उससे उनकी जो है ज़्यादा अच्छी बनी। Have you ever used a tactic like that in your career, Misbah, you or Shoaib, you? मैक्स ये किया है कि थोड़ा सा ओवल हैंडल जो है बैट का वो यूज़ किया है, या कभी
उस पे अगर सक्सेस नहीं मिली तो उसको बिल्कुल ओवल राउंड से क्या कर मुराद दिया। है कि वो एग्जैक्टली राउंड नहीं होता, वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा ओवल शेप में होता है, जैसे ये सीम वाली जो साइड है ये, ताकि आपका जो नीचे वाला हाथ है हाँ। वो बेसिकली इन 3 चीज़ों में जो है ना वो ग्रिप बनती Right, है। okay, ये so जो the- बाकी की 2 फिंगर्स हैं ये वैसे ही आपको थोड़ा सा सपोर्ट देती है और round ओवल नहीं शेप होता। में अच्छा वो बनता वो है। राउंड और नहीं जो- होता, वो थोड़ा सा साइड से ऐसे सीधा होता है। और जो बॉटम हैंड बैट्समैन है उसके लिए जो राउंड शेप है वो ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि वो पूरे बैट को इस तरह करके पकड़ते हैं पूरी ग्रिप से। और मेरा नॉर्मली मैं जब खेलता था तो बहुत ही बारीक हैंडल होता था और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता था। यू मीन हैंडल handle- जिसे उर्दू में लचक कहते हैं हम। जी जी बिल्कुल। आपको याद है एक टेस्ट मैच के दौरान वो स्टक हो गया रनिंग में पैड में, तो वो हैंडल बिल्कुल ही ऐसे हो गया, बेंड हो गया। वो इतना बेंड हो गया और मैंने फिर उसको चेक किया, हैंडल को यूँ करके मैंने सीधा किया, सीधा करने के बाद यूँ किया क्योंकि आवाज़ तो नहीं आ रही, एंड देन आई जस्ट कंटिन्यू प्लेइंग विद दैट। विद द सेम बैट। वो वाओ, रबड़ का हैंडल था क्या? अगेंस्ट इंग्लैंड ही था दुबई में 2015। सेम सीरीज जो आप कह रहे हैं जिसमें लेग बिफोर आप कह रहे थे, उसी इनिंग उसी से। बट सो मिस व्हाट इन दैट हैंडल डिड यू हैव टू मेनी लेयरिंग ऑफ रबर, बिकॉज़ वो लकड़ी का हैंडल होता है लेकिन साथ में रबर के उसमें एक्चुअली जब हैंडल थोड़ा सा थिक होता है जी तो वो हार्ड होता है, अच्छा लचक उसकी खत्म हो उसकी जाती है। लचक नहीं होती। जब वो बारीक होता है, क्योंकि केन्स होती हैं उसमें, उसको जोड़ा होता है उन्होंने, जितना वो बारीक होता जाता है उसकी वो स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वो स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है, तो वो एक जिस तरह आप कहते हैं पतली लकड़ी, उसमें लचक ऑटोमेटिकली बिकॉज मैंने जो थोड़ी बहुत बैटिंग की है वो उसमें मेरी ग्रिप्स जो थी वो इमरान भाई को कॉपी करते हैं, उनकी ग्रिपें 4 होती थी, टेस्ट मैच में इतना मोटा, और मेरी होती थी 3.5, 2 फिर आधी फिर एक ऊपर पूरी, ताकि आधी नीचे आई वांटेड कि मेरा बॉटम हैंड था नीचे से मेरा ग्रिप मेरी प्रॉपर रहे। और इससे एक और चीज़ होती है, जो थिन हैंडल के साथ खेलते हैं बैट्समैन, वो मोस्टली उनकी रिस्ट रोटेशन जो है ना वो अच्छी चलती है, और जो पंच के साथ खेलते हैं, जो बॉल की तरफ जाते हैं, वो ज़रा थिक हैंडल के साथ खेलते हैं। और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात है वो मैंने टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि मैं सियालकोट का हूँ तो मोस्टली फैक्ट्रीज वहाँ पे हैं। जो रबर्स होते हैं बीच में हैंडल के जो लगे हों, तो अगर आपको लचक चाहिए तो वो जो रबर हैं वो नीचे तक जाते हैं जहाँ से ब्लेड शुरू होता है, तो वो उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जिनको स्टिफ हैंडल चाहिए वो हैंडल के आधे में जो है वो रबर ख़त्म कर देते हैं। ऑलराइट जनाब, अगला सवाल जो है वो आया है शहजाद रहमान से, और वो कह रहे हैं विल आयरलैंड बी एन easy to beat for Pakistan after watching today's game? Wasim Akram, आपसे पूछिए। They call giant slayers. Yeah. Believe me, you can't take team like Ireland easily, especially in this format. 50 ओवर के मैच में maybe, but not in T20. They're a very, very dangerous side, and they'll make sure they'll keep every team on their toes. Alright, तौकीर का सवाल है आपसे वसीम कि आपके ज़माने में who was the biggest food lover in the team? यार हमारे ज़माने में सारे ही खाने वाले थे, बिकॉज हमें इतना पता नहीं था उस वक्त, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हमें यही बताया गया था जो हमारे बड़ों ने, जो उनको देखा सीखा कि ट्रेनिंग दबा के करो तो रोटी रज के खाओ। ठीक है, ओके जनाब। लेकिन ये तो रज के खा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, मिसबा ट्रेनिंग करता है और उधर मैं इसको देखता हूँ ट्रेनिंग करते हुए। That's a big problem. That's a big deal. That's a good start. आप जिम में थे उस दिन? मैं जिम जाता हूँ और इनको देखता हूँ कि ये ट्रेनिंग जिम में इसकी तस्वीरें आती हैं, जरा देखना इंज करके मुंह एकदम मुंह छोटा हो जाता है। मेरी ट्रेनिंग हो जाती है, इनके इर्द गिर्द चक्कर लगा लेता हूँ 3-4। लो मतलब इनका चक्कर इतना बड़ा है। 2 किलोमीटर रन। I am taking all these hits directly. No problems. Question to Shoaib Malik bhai from Bring It On. Are the boundary lengths in our strategy nowadays, which is very important in Australia? क्या बाउंड्री लेंथ्स जो हैं वो क्या हमारी स्ट्रेटजी में जब हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल करते हैं। जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जिस भी आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो उस पूरे ग्राउंड को जो है वो डिस्कस किया जाता है मीटिंग में, ताकि उस हिसाब से प्लान बनाया जा सके। एक मीटिंग में बनता है, एक इंडिविजुअली आप बनाते हैं जब आप देखते हैं कि कंडीशंस कैसी हैं, ग्राउंड की बाउंड्री साइजेस क्या हैं, उसके बाद एज अ बैटर आप अपना प्लान बनाते हो। और इसी तरह सेम गोज़ फॉर द बॉलर्स
क्योंकि वो भी अगर जिस तरफ बड़ी बाउंड्रीज हैं तो कोशिश बॉलर ये करता है कि बैट्समैन उन पॉकेट्स में जो है मुझे शॉट मारे ताकि आउट होने के चांसेस हो। ऑलराइट, मुनीब अहमद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम और लेजेंड्स, क्या इंक्लूजन ऑफ मैथ्यू हेडन एज मेंटोर विल दैट इम्पैक्ट पाकिस्तान्स पावर हिटिंग एबिलिटीज? मिस पाले में टेक दिस टू यू। देखिए, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ज़रूर होगा कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हेल्प आउट कर सकते हैं पाकिस्तान को। ऑब्वियसली ही वाज अ वेरी गुड बैट्समैन और उसकी जो हिट्स थी बहुत बड़े बड़े छक्के वो मारता था, और बेस उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, टेक्निक बड़ी अच्छी थी उसकी। कहीं ना कहीं ज़ाहिर है आपको हेल्प मिलती है, बट एज अ मेंटोर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे ख्याल में वो मेंटली बैट्समैनों को हेल्प आउट करते हैं, मेंटली रेडी करते हैं, और जब वो बात करते हैं, इनकरेज करते हैं बैट्समैन को, कुछ ना कुछ अपना शेयर भी करते होंगे एक्सपीरियंस वहाँ की विकेट्स के हवाले से, तो दैट समटाइम्स हेल्प एज ए बैटर आपको जो है ना उसकी उससे थोड़ा सा फ़ायदा होता है। बट ओवरऑल आई थिंक ये अपने पे डिपेंड करता है बैट्समैन के, जो ऑलरेडी जो एबिलिटी है बैट्समैन के अंदर वो है, और उसको बैक करना है, और मेंटोर भी जाहिर है यही करता है। I have a question from Malik Salim Raza. Very good question actually. Well done, buddy. मेरा आपका उसका क्वेश्चन मेरे और मिसबा से है, बट मैं शोएब और आप दोनों से पूछता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया मैच में हमें पता है कि वेदर फोरकास्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट। Yes. आई डोंट वांट टू बी अ बज़किल बट दिस कैन हैपन। अगर वो मैच 8 से 10 ओवर का होता है तो हु शुड ओपन फॉर पाकिस्तान? गुड पॉइंट, वेरी गुड क्वेश्चन। इफ इट्स अ शॉर्टन वर्जन, वो एक दूसरे पे पास किए जाते हैं। मलिक साहब बताएं। नहीं, व्हाट डू यू थिंक? होगा नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग, व्हाट डू यू थिंक? उसमें मेरे ख्याल में जो सेम हमारे दो ओपनर्स हैं उन्हीं के साथ जाना चाहिए। Okay. नीचे से आप जो आपका नंबर 3, 4, 5, 6 है उनमें से आप जो है वो कर सकते हैं, और Shuffle. उसको भी उनको भी फ्लेक्सिबल रहना है। क्योंकि जब आप छोटा मैच खेलते हैं आपको नहीं पता क्या सिचुएशन आपके सामने आएगी, तो ओपनर्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए। Alright, so you think no that from this one? आई थिंक इट्स द राइट आंसर। और फिर आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके जो स्ट्राइकर हैं और इन फॉर्म हैं जो लोग, मुझे लगता है नवाज़ और शादाब, उनका रोल बहुत होगा अगर छोटा मैच होता है। जैसे हम 4 पे भेज देते हैं या 5 पे भेज देते हैं, तो इन फॉर्म बैट्समैन स्पेशली इस टाइप के मैच में उनको आप यूटिलाइज़ करें। दोनों ओपनर आपके इन फॉर्म हैं, कॉन्फिडेंट है, रन्स करते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं मैच पे वो नवाज़ और शादाब है। Alright, fair enough. मिस्टिक हेस की तरफ से वसीम अकरम आपके लिए सवाल है। वसीम सर, आई गेट ट्रबल इन कीपिंग माई सीम स्ट्रेट। आई एम अ राइट हैंडर and my seam seems to wobble when I let the ball go. Any leads from the legend, please? So, you know. Yeah, I suppose उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। अब आइडिया ये है कि जब आपके हाथ से बॉल निकले ना, वो ऐसे निकले पूरा, जैसे अगर अंदर भी लाना है, अगर मैंने अंदर भी लाना है क्रॉस के, मैं ऐसे लाऊंगा, साथ में शोल्डर लगेगा तो ये सीम ही लगेगी। जब वॉबली सीम आती है, जब बॉल आपको कभी ऐसे जाता है, उसे कहते हैं वॉबली सीम। मोस्टली वकार या माई सेल्फ या ऑल द आजकल के सारे जो हमारे टॉप बॉलर्स हैं, इवन शाहीन भी अगर करेगा तो आप देखिए उसकी 6 की 6 बॉलें यहाँ लगेंगी सीम पे। वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। रिस्ट आपकी सीधी रहेगी, ये हिले ना आपकी, ये बिल्कुल सीधी रहे उसमें, यू नो, एंड देन यू इवेंचुअली यूज़ अ लिटिल सटल मूवमेंट्स ऐसे, एंड आउट स्विंग के लिए हल्की सी ऐसे, बट जाएगी वो सीधी, और रिस्ट पर काम होता है ये सारा, उसको वो प्रैक्टिस से आता है। Okay, it's all about the practice, the dedication, the time that you invest into it, and follow the tips that you get from legends like Wasim Akram. और दोस्तों, इसके साथ ही हम लेंगे एक और वक्फा right here on the Pavilion. Keep watching A Sports 10 Sports and the ARY Zap app. See you on the other side. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports 10 Sports and the ARY Zap app. The continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. Qualifying rounds are done and we are now moving on to the Super 12s. 2 ग्रुप्स हैं, ज़रा नज़र डाल लेते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि क्या हैं 2 ग्रुप्स हमारे पास जो फॉर्म हुए हैं आफ्टर द क्वालिफायर्स. Unfortunately, West Indies will have to go back home and so would Scotland, but this is how Group 1 is. England, New Zealand, Australia, Afghanistan, श्रीलंका, आयरलैंड, और कल जो है वो इंग्लैंड का मुकाबला है अफगानिस्तान से. सो इट इज़ ए बिग गेम दैट यू विल सी इन ग्रुप 1, बट ग्रुप 2 ऑल्सो हैज़ ए वेरी
Actually, Group 1 ही के matches हैं. England versus Australia also. New Zealand versus Australia as well tomorrow. My apologies. I'm like, I think two different groups will have a game on the same day. But अगर थोड़ा सा आप कट डाउन करें ना खाना, हाँ. तो ये ना हो मिस्टेक. सही है. चलें जनाब, आज से Pavilion I have a question for you. It's a question for our best host from Sayyid Sabir Shah. Question to Fakhr. Has your expedition to fly around the world made any significant change in your life? And who in your panelists is daring enough to follow the lead? And what is your best memory of that experience? Okay, thank you very much for that question. Yes, it changed my life in many ways. Primarily, I think जब आप जहाज उड़ाना, flying is okay. A lot of people can fly, but to plot a complete circumnavigation of the globe, which is आपने हमारा जो सैयारा है ज़मीन, इसका मुकम्मल गर्दशी चक्कर लगाना, और वो भी when you're trying to fly all by yourself and going through different airspaces and all that, there are a multitude of challenges. तो जो discipline और organization उससे पहले अपने आप को आपको apply करनी पड़ती है in various fields, Wasim bhai, whether it is Met, whether it is air navigation, whether it is organizing the air permits and the landing permits and so forth and so on. So there's a lot of prep. So I've never done so much prep for anything in my life, कि यार ये organized तरीके से, and because फिर हर फैसला जो है उस पे आपकी ज़िंदगी depend कर रही होती है. If you make a mistake, it's not as if you can come back and play another innings. You can end up in a fatality. As far as what do I think if my panelists would dare do that, I think जो मेरे panelists हैं यहाँ पे, they have been extremely great representatives of Pakistan, and what they've done in their life is no less a feat by any means. In fact, much more daring than just me flying an airplane around the world. And finally, what was the last part of the question? Well, I think that's more, what is my best memory? My best memory is when I was detained in Russia for 36 hours. Yeah, that's what I was about to ask. Fine, पढ़े भी गए सन? 36 घंटे, 36 घंटे. और मेरी बेहतरीन memory flying की वैसे जो है ना, best memory of my life flying airplanes is recently when I got to take during the Asia Cup Wasim Akram and Waqar Younis to fly with me and made them fly the airplane. That was unbelievable experience. And I have to, Wasim and Waqar, both incredible, because I handed the controls to them and then I said, ये इसको बस level रखें, and they were like, well, if somebody asked me कि किसने जहाज बेहतर उड़ाया था, तो चूँकि वकार यहाँ पर नहीं है मौजूद, तो मैं बता सकता हूँ कि it was actually Wasim. It was actually Wasim. He flew it much better than Waqar. I was a bit tense because I didn't know, let's say, cricket में आपकी saying होती है, जैसे running between the wicket you shout mine, catching में mine. So इसने पकड़ा हुआ वो जहाज उड़ा रहा है और suddenly इसके हाथ भी चले गए हैं, and then he said your plane. I said I beg your pardon. He said it's your plane. So that's what you say when you change the thing, you have to say it your plane. Your plane. ताकि other person can hold the handle. It is. But you were so, because I want to just to tell you कि आप ये बिल्कुल छोटे वाले जहाज़ होते हैं, 2-सीटर जिस पे हम फ्लाई कर रहे थे, तो इसको हैंडल करना जो है ना काफ़ी चैलेंज. बड़ा जहाज़ होता है उसको हैंडल करना बहुत आसान होता है. जितना छोटा जहाज़ होता है वो उतना ज़्यादा डिमांडिंग, because of wind and because there is not enough automation, because this is a purely stick and rudder experience, right? So it's all pilot hand skill that comes into play. और मैं इतना इम्प्रेस हुआ क्योंकि मैंने कहा जी 1000 फुट आपने मेंटेन करना है और ये हेडिंग मेंटेन करनी है. मजाल है कि कोई इनका एल्टीट्यूड इन्होंने छोड़ा हो 1 मिनट के लिए, या होराइजन ऑफ हुआ हो कि जहाज बैंक में गया हो. सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. वेल डन स्किप, वेल डन, रियली वेल डन. वो डर से हुआ था ये सब कुछ या? I was a bit panicky. Little bit. I knew I'm in safe hands. Yeah. But it was, you're in Dubai next time, I'll take you. You should, when Misbah comes in. और Misbah, by the way, has had a great experience with all of us. Misbah ने ज़िंदगी में कभी स्कूबा डाइविंग नहीं की थी. तो और ये करना नहीं चाह रहे थे. जब हम अपना सारा कर आके आ गए तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से माने ये गए नीचे. 20 मिनट बाद 25 मिनट जब उनके टैंक में हवा खत्म हुई, ये वापस ऊपर आए, तो फिर क्यों ऐसी आंधे नाल की क्या ऐसी? मैं दोबारा जाऊँ एक दफा फिर. मैं क्या बात करते हैं, वापस जाना है. दोबारा ऐसा से जाना थी कि थल्ले मच्छियाँ सन. All right, जी, my question for Misbah bhai. This is Tausif Ansari. Or my question is for Misbah bhai, why Pakistan can't make a middle order batter like you? You are just mind blowing. Wait, full fan है आपका ये. खुद तो नहीं किया ट्वीट ये? Tausif Ansari, very nice. But why do you think we're not able to produce batsmen, the way that you guys were? Shoaib ho gaya, aap ho gaye, even Wasim bhai, has got
250 plus runs in test matches, so why not? आई थिंक कि जो मुझे उसकी वजह नज़र आती है वो यही है कि हम लोगों ने काफ़ी क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट और नीचे बहुत क्रिकेट खेली, और मिडल ऑर्डर ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेशली सिचुएशंस ऐसी आती हैं विदाउट एक्सपीरियंस उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, जो मुझे जनरली नज़र आ रहा है तीनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है कि जब गेम अगर आपका टॉप ऑर्डर उसने अच्छा स्टार्ट दे दिया है, देन अगेन गेम आप पे आके किसी तरफ जानी है, हारने जीतने की तरफ जानी है, और अगर आपके जल्दी आउट हो गए हैं तो देन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर. सो यू नीड टू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ गेम. ये नहीं कि सिर्फ मैं मारना ही जानता हूँ. अब वन डायमेंशन, जैसे वेस्ट इंडीज़ को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे भी वही प्रॉब्लम हो रही है, वन डायमेंशनल नहीं हो सकते मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि एवरी इनिंग यू कैन फेस अ न्यू सिचुएशन. Right. तो आपके पास दोनों गेम, सिंगल्स डबल्स हैं, गैप शॉट्स हैं, उसके बाद आपके पास बड़ी शॉटें हैं, सारी चीज़ें होनी चाहिए. प्लस गेम अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा. दुनिया के जितने टॉप क्लास बैट्समैन हैं, अब देखें फिनिशर माइकल हसी था, उसके बाद MS धोनी था, अभी भी आप देखें कि जितनी टीमों ने अपने ऐसे प्लेयर वहाँ पे रखते हैं जिनकी गेम अवेयरनेस, सिर्फ हिटिंग पावर नहीं, गेम अवेयरनेस भी ज़बरदस्त हो, ताकि वो अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक चेंज कर सकें. जी शोएब, इसमें अगर हम कल इस पे फर्दर इस पे बात कर सकें विद ऑल द स्टैट्स, Right. जो फिनिशर हैं, जैसे मिसबा भाई ने नाम लिया माइक हसी, उससे पहले माइकल बेवन थे, MS धोनी हैं, युवराज सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं दुनिया भर में. तो अगर हम उनकी बाउंड्रीज तो वो मारते हैं, लेकिन अगर हम उनकी स्ट्राइक रोटेशन जो है उसका हमारे पास डेटा हो तो दिस कैन बी अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन. इंटरेस्टिंग. आई थिंक वी लास्ट मजर टू ब्रिंग अस दैट आउट. इंटरेस्टिंग पॉइंट. दोस्तों, डॉक्टर नजीब सुमरो हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये डॉक्टर हैं. इन्होंने एक पैगाम भेजा शोएब को, जो शोएब शेयर विद अस. हम बात कर रहे थे, वो एक लेग स्पिनर थे सियालकोट के आपके, मंसूर अमजद की, कि उनकी नर्व डैमेज हो गई थी और वो नर्व की ही हैड टू गिव अप लेग स्पिन बॉलिंग. तो उस कंडीशन का नाम है बाकायदा, मेडिकल कंडीशन, एंड इट्स कॉल्ड द मीडियन नर्व entrapment syndrome. Median nerve entrapment syndrome. Thank you Dr. Najeeb Sumro for sharing that. उन्होंने पूरा उसका डायग्राम भी शेयर किया है वसीम, और पूरी उसके वो बताइए कि वो कौन सी आपकी ये दो फिंगर्स हैं, एंड देन दे कनेक्ट ऑल द वे अप हियर, जो जिसमें कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है. तो दैट साथ में ये भी कहा कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसका वर्कलोड और ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उसके काफ़ी सारे स्ट्रेचेस हैं, और कहते हैं कि अगर जैसे ये 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है, तो जब कभी आपके पास एक्स्ट्रा फिंगर कुछ लोगों की होती है या एक्स्ट्रा थंब होता है, तो कहते हैं कि यूजुअली ये इशू उनको होता है, उनकी ये जो नर्व है वो स्टिफ हो जाती है. Okay. So if there's an extra limb, maybe that's when you would get that. But that's very interesting. Thank you, Doc. Yeah, thank you, Doc. Really, truly appreciate how that goes. अच्छा जनाब, अगला क्वेश्चन है अली मुआज का. अली मुआज आज द पेविलियन पूछ रहे हैं, पोस्ट 99 वर्ल्ड कप टीम Pakistan seems to have a mental block against Australia in knockout tournaments. Do boogie teams exist, and how to counter them? A boogie team means? I think this is a boogie team that becomes impossible to defeat. Australia always has been a good side. Yeah. I mean 90s में they were unbeatable. I don't know 6 कितने वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं. बिल्कुल ऐसे ही. कितने टेस्ट मैचेस जीते हैं. Not just in Australia, wherever they went. Their bowling attack, their fielding, their batting, their whole attitude. Australia always has been a difficult team to beat, especially in Australia. They were literally unbeatable at times. उनके लेवल पे जाना पड़ता है. हाँ. अगर आपने उनको बीट करना है तो उनके लेवल पे जाना. उसका ये मतलब है कि वो आप पे हार्ड आते हैं, आपको भी हार्ड ही आना है उनके. हार्ड बट कंट्रोल्ड. अननेसेसरी हार्ड नहीं कि आप फिट भी नहीं हो, टैलेंट भी नहीं हो तो कुरियां कराई जा रहे हो, बट यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी एंड दैट फिटनेस टू कम्पीट विद दोज गाइज. हार्ड आने का मेरा ये मकसद था वसीम भाई कि आप एज अ बैटर आपके उन जो बॉलर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आपको. वो आप पे हार्ड आते हैं तो आप उनको टेक ऑन करें कि यार मैं जो है ना करा, मुझे जहाँ पे भी कराता है मैं देखता हूँ. और आगे एक क्वेश्चन आया था जो हमारे मेंटोर थे मैथ्यू हेडन, मैं आई वाज पार्ट ऑफ द टीम. राइट. तो मुझे उनकी ना एक बहुत अच्छी बात लगी. उन्होंने कहा कि मेरा एक कंसर्न है जो आप अगर मुझसे पूछो
वो ये है कि playing in the first 6 overs, I am not happy where we end the power play in batting. ठीक है, ये मेरा एक कंसर्न है। जो उन्होंने हमारे सामने जो बैटिंग मीटिंग होती थी तो उन्होंने ये क्वेश्चन रखा, लेकिन यू गाइज नो द कंडीशंस बेटर देन आई डू, तो आपका जो है वो मैं आप पे ये चीज़ छोड़ रहा हूँ। बट आई एम श्योर जहाँ आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, ही इज़ ऑस्ट्रेलियन एंड ही इज़ गॉट सो मच सक्सेस, तो वहाँ पे मुझे ये एक चीज़ है जो फर्स्ट 6 ओवर्स हैं उस पर वो एम्फसाइज ज़रूर करेंगे ताकि थोड़ा जो runs हैं वो ज़्यादा मिले first 6 overs. All right, with that, we're going to take a break here on the Pavilion. When we come back, yes, this is the last break. And when we come back, more for Ask the Pavilion. देखते रहिए A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Welcome back from the break. मैं हूं फख्र आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah and Wasim Akram. जानने से पहले आज The Pavilion के हवाले से हम आपके सवालात ले रहे थे। ICC Men's T20 वर्ल्ड कप की हमारी कवरेज जारी है। आपको बताया कि क्वालिफायर्स जो हैं आज खत्म हो गए हैं। Now we have the final 12 teams. कल जो मेन राउंड्स हैं उनके पहले मैचेस हैं। ग्रुप 1 में कल 2 मैचेस हैं। पहला मुकाबला बहुत ज़बरदस्त तगड़ा मुकाबला होगा, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया इज द डिफेंडिंग चैंपियन एंड दे हैव द होम ग्राउंड एडवांटेज, बट न्यूजीलैंड इज फेमिलियर with these conditions as well and expect a good contest there. और दूसरा मुकाबला कल जो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे वो है अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। Remember, Afghanistan is a side that can upset any team, any good team, any great team at any given day. And can England be taken off guard? You never know. You never know with that. But that's the beauty of the T20 format. The gap between teams just gets smaller and smaller and smaller. And with that, I'd just say that हम आपकी खिदमत में कल सुबह 10 बजे बराह रास्त हाजिर होंगे। कल मैचेस लेट शुरू होंगे, so tomorrow morning we are going to be live on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app at 10 a.m. So the pre-match is going to be from 10 a.m. till 12 noon, and then we'll go into our first match and then the second match, and then we'll be back in the evening with you for the post-match analysis. और कल का post-match बहुत important है, क्योंकि कल post-match में दोस्तों हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो कि इतवार को होना है 23 अक्टूबर को, उसकी बात करना शुरू कर देंगे। Tomorrow we need all hands on deck. Yes, we do. Waqar? जी, वकार अगर आप देख रहे हैं, जो कि आप यकीनी तौर पे देख रहे होंगे, comfortably lying in your bed in the hotel suite. I took his picture in the morning. It's in my phone. It is. Yeah. He was looking very pretty this morning. अब आप लेके भी नहीं जाएंगे बाहर उनको? Hello? Are you asking me? Deny. No, we sincerely hope that he gets well soon and joins us tomorrow morning, inshallah. And that tomorrow is going to be an exciting day. Misbah, how do you see this? Quickly, to recap on the first match, Australia versus New Zealand. Obviously, I think दोनों, एक तो ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है और न्यूजीलैंड रिसेंटली नॉट इन गुड फॉर्म, बट कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट पे ये वर्ल्ड कप शुरू करें। बिग टेस्ट है उनके लिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस एंड प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमेशा से वो वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। बट इट विल डेफिनेटली सेट द टोन इस टूर्नामेंट की कि हाँ ये होस्ट जो है वो भी खेल रहे हैं तो कैसे वो खेलते हैं, और डिफेंडिंग चैम्पियन है ऑब्वियसली, और दोनों फाइनलिस्ट हैं लास्ट T20 वर्ल्ड कप के। आई थिंक आफ्टर दैट ये और भी ज़्यादा इस मैच में इंटरेस्ट होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, इंग्लैंड और पर्थ में मैच है। चीज़ें तो ज़्यादा वैसे इंग्लैंड को वहाँ पे सूट करेंगी। उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो अगेंस्ट स्पिन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है। वो कन्वेंशनल क्रिकेट नहीं खेलते, वो जो शॉटें हैं उल्टी सीधी वो सारी इंग्लैंड का। आई थिंक पर्थ की ऑस्ट्रेलिया में मार्क वुड विल बी वेरी वेरी यूजफुल विद हिज स्पेस एंड द वे ही बोल्स, द लेंथ पे जिस पे बॉल वो टेस्ट करेंगे अफगानिस्तान को शॉर्ट बॉल पे, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूजीलैंड ने भी इवन दुबई में इन कंडीशंस में टेस्ट किया था। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनको। पर्थ में हम टेस्ट मैच था हमारा 2000 में, मैं बैटिंग करने गया, यूजुअल वी वर 80 for 8 और समथिंग, 80 for 6-7। तो ग्लेन मैग्रा, कैस्परोविच था एंड आई फॉरगॉट कि ग्लेस्पी था। अब मैंने वो चेन पहनी होती थी अंदर ना, तो हेलमेट की ग्रिल थी। अब मैं वो एक होती है ना लेंथ जिस पे आप यहाँ आगे जाते हैं,
अब उस लेंथ से बॉल, और वो दे weren't 150, they were 135, 140-ish. ग्लेस्पी तेज था थोड़ा, कैस्परो भी जाके मारता था. अब मैं कोई पहले 15 मिनट मुझे सिर्फ आवाज़ आती रही है, ऐसे करता था चेन लगने की यहाँ पे. लेंथ बॉल यहाँ से कीपर वो पीछे खड़ा हुआ था. सो ये बाउंस का फर्क है वहाँ पर्थ में. वो बड़ी मुश्किल होती है बिकॉज उस गेंद को अब यहाँ पे ऐसे खेलते हो, वहाँ वो यहाँ से चला जाता है उसी लेंथ से. भाई दूसरा ग्राउंड है ये नया वाला, लेकिन यहाँ पे भी बाउंस है. यहाँ पे भी बाउंस है और नया बना है ये. बाउंड्रीज जो है. Optus Stadium. Yeah. In Perth. Yes. So this is similar kind of pitch that Perth promises. Perth is another beautiful city. Swan River going in the middle of the city and the CBD Central Business District, जिसे टाउन सेंटर कहते हैं इंग्लैंड में या डाउनटाउन अमेरिका में. It's beautiful. We're going to talk more about Australia. We're going to talk about the games that are at hand, and we are going to be back here in your on your television screens at 10 a.m. tomorrow morning. देखते रहिए A Sports, 10 Sports, ARY Zap ऐप और Pavilion में कल सुबह आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourselves. Good night.